currently pursuing my master's degree in psychology from BHU and will be the moderator for today's session. In our previous session, we delved into concepts of parametric and non-parametric tests, their meanings, differences, and other subtleties. Sir explained to us the scales of measurement and introduced the chi-square test as a test of independence and goodness of fit, followed by in-depth explanations of the same, as well as hands-on experience with one-way ANOVA and chi-square on sample questions. For those who are joining us for the first time today, our guest speaker, Dr. Kulvinder Singh, is a retired professor of education from Punjab University, Patiala. His area of interest Punjabi. ranges from... Hello. Yes, sir. Correct yourself. Punjabi University, Patiala. Not Punjab, Punjabi. Yes, sir. Yes, sir. Apologies. Yes. Punjabi University. Different university. Punjab University, Chandigarh. Punjabi University, Patiala. Okay, sir. Okay. Sorry for the confusion. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सेपरेट है, उसको भी पंजाब उससे कंपेयर करते हैं. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. ओके. Yes, sir. Yes. So we, as a scholar, we must be very particular in using any word. कहीं गलत मीनिंग ना दे दे. ठीक है? Yes. Okay, go ahead. So he was engaged in policy research concerning sustainable development goals and inclusive development as well. And sir, we all welcome you again with the warmest of our regards. And a little reminder to our participants to keep their notebooks and pens handy for noting down concepts and takeaways from the session with ease. Now, before starting the session, I also want to inform our participants that for a smooth proceeding of the session, your cameras and mics have been disabled. However, they will be available at the end of our session, so you can ask your doubts and queries at that time. Meanwhile, you can keep typing your queries in the chat box as well, which will be addressed in the middle of the session too. So, without further ado, I request Sir to take it up from here and enlighten us with today's session. Dear scholars, this session is not purely on paper writing. I know it was named like it, and I wished I should speak only on that point. But again, I conscious हो रहा है कि in continuity of our discussions and from my side, whatsoever I wanted to share with you, there are certain concepts in between which need to be taken up not once, not twice, many times. Many times, I will say, चल ठीक है तो अभी निकल रही है ना यहाँ से for rethinking and to be more accurate, to be more precise, and to be truthful in the search process. 14% है मेरा कितना परसेंट है तेरा For example, if I have conducted one study just on a sample and then I am trying to conclude and then trying to estimate about population which is unknown, it may have some errors. I started with errors. कल कर देंगे ठीक So again, coming to that point, है errors. कल कर देंगे यार कम So we have to be cautious. अपने इस वीक का टारगेट पता So है क्या while था doing that DAT exercise in the beginning of this month, और ये पैरेलली था इसमें से कोई एक खत्म certain करने का तो इसमें issues से अगर कल which TAT हो जाए ना तो सही रहेगा came across. जाने से पहले घर जाने So से some of them, these issues, I am taking up today. Before going to that तू जब वो बता दियो मैं मैनेज part कर which लूंगा was assigned for this lecture, because it will continue. It is not going to be concluded because I am not going to provide you any lead with regard to how your writing skill is yours. But what is to be there, it is to be seen that we will be sharing देख लूंगा वहाँ का कंसीडर कर लूंगा और एक और चीज थी ना certain क्या बोल रही थी pertinent points. वो अपन मिठाई वाला तो मैं देख लूंगा तू बस ये नाम मेरे को So to begin with, I will request just Anita, please. मैं क्या बोल रहा था यार हाँ वो उसका First बोल रहा slide था मैं कल का कि जैसे तू तेरा जो of प्लान sample है size. कल को उसका Sampling is टाइमिंग the कंफर्म कर main दियो issue. उस हिसाब से मैं बता दूँ All issues are main issues, I will say, but sampling is the main issue on whom we are to
conduct our तो research. तू कल घर So जा रही हो, please फिर इतनी हो जाएगा। to help. हाँ, yes. हाँ तो मैं दिल्ली पी लूंगी ना 12 साढ़े 12। अरे There बहुत were देर से many होता है यार questions with उसका। regard to the sample size कितना होना चाहिए है. देख लियो So मेरे भी यार। don't look at the top, look at ज्यादा the मत bottom. पियो। क्या ही पीऊँ। Look at सही the में नहीं, bottom. तभी तो मैं क्या कहते हैं, मैंने Point कल तो फिर मैं भी सोच रहा था जैसे कि क्या 1 कहते 2 3 हैं, 4 यहाँ से जाने से पहले ऐसे कल बोले। जो स्मॉल में लिखे गए हैं नीचे वाले. यस यस प्लीज. सैंपल जो मेरी रिसर्च का डिजाइन है वहां से कुछ बातें नजर आएंगी कि मेरा सैंपल साइज कैसे होना चाहिए है. और पहले में पॉइंट में लिखा हुआ फॉर फैक्टोरियल डिजाइन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है उसके अंदर. दूसरे में कौन से अकेली कोरिलेशन स्टडीज हैं. तीसरे में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं. चौथे में केस स्टडीज हैं. यू मे ऐड एंड दिस इज योर असाइनमेंट कि आप आगे कौन सी स्टडी लेना चाहते हैं. जहाँ पे आप ऐड कर लोगे तो हम सैंपल साइज के बारे में आने वाले एक सेशन में या 2 सेशन होंगे या उसके बाद भी होएगा तो दोबारा बात करेंगे. अब हम फिर आ जाते हैं ऊपर टॉप पे आ जाइए. नहीं आधे घंटे में चल जाएगा। सर्वे स्टडी में सीधी बात है सैंपल साइज कितना होना चाहिए. तो वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास पॉपुलेशन नोन है और अननोन है. नोन है तो पॉपुलेशन सैंपल को हम बिल्कुल साइंटिफिकली सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी देखिए हमारे देश में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं. अभी ओपिनियन पोल सर्वे जाएंगे. आप लोग ध्यान से सुनिए उनकी मेथोडोलॉजी क्या रही होगी. ध्यान से देखिए उनकी सैंपलिंग कैसे करी होगी. उन्हें किन कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा कलेक्ट किया होगा और उसमें से कुछ एक बूथ के ऊपर इलेक्शन बूथ के ऊपर से बूथों के ऊपर तो अभी नहीं. बूथों आप वोटिंग के डे पे जाएंगे लेकिन जो बूथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स है वहां से कैसे उन्होंने सैंपलिंग करी होगी. और जहां से वो एस्टिमेट करते हैं कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पार्टी ए बी सी डी ई एनी पार्टी कि किसके विनिंग के चांस हैं किसके विनिंग के चांसेस नहीं है, फिर कितनी सीटें जीतेंगी कितनी वो नहीं जीतेंगी. और साथ में एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर मार्जिन वो चलता रहता है. वो आप देखेंगे 3% का 2% का लाइक दैट वो आप देखते रहेंगे. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो मेरे सभी स्कॉलर को सभी स्टूडेंट्स को निवेदन है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं. हमारी पार्लियामेंट के लिए कुछ जगह विधानसभाओं के इलेक्शन भी हैं. तो उसमें देखिए सेफोलॉजिस्ट किस तरीके से किसी कैंडिडेट की और किसी पार्टी की विक्ट्री को एस्टिमेट करता है. वेरी इंटरेस्टिंग. वो सारा सैंपल साइज पे निर्भर करता है सैंपल कैसे आएगा. और वो जो लेके आते हैं वो उनके पास सैंपलिंग साइज कहाँ से आता है. पहले नुक्ते से आता है जो मैंने कह रखा फ्रॉम नोन पॉपुलेशन. अब आपकी अपनी असेंबली की और पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी वोटर लिस्ट का एक नंबर है, वो यूनिक नंबर है. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी चाहे लोकसभा की है चाहे विधानसभा की, उसमें नंबर ऑफ वोटर्स एज पर अवेलेबल ऑन पर्टिकुलर डेट जहाँ पे क्लोज कर देते हैं कि कितने वोटर थे, वो एग्जैक्ट नंबर है. अखंड वगैरह वो घर जा रहा है उसको हम एग्जैक्ट नंबर मानते हैं. होता नहीं है क्योंकि कुछ लोग हैं जो उस लिस्ट में हो सकता है किसी का उसकी जिंदगी में उनकी मृत्यु हो चुकी हो और वो अभी लिस्ट से नाम ना काटे गए हो. नंबर 1. नंबर 2 क्या है कि कुछ लोग हो सकता है वहां से माइग्रेट कर गए हो लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होता हो. नंबर 3 ऐसे हो सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही ना आया. मैं रहता हूँ लेकिन मेरे वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है. ये झगड़े होते हैं जब आप वोट के दिन अपने इलाके में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे. ये कॉमन फीचर होता है कि मैं वहां अपने वोट डालने जा रहा हूँ, कहते हैं आपको तो नाम ही नहीं है. जब मैं अपना नाम देखता हूँ तो वो लिस्ट में नाम ही नहीं है तो फिर कहते हैं पहले अपना चेक कर लो वोटर लिस्ट में. तो मतदाता के लिए कई बार ये भी अभियान चलाया जाता है कि अपनी वोटर लिस्ट को चेक करो, अपना वोटर नंबर याद रखो पता चला पोर्टल सही होता ताकि आपको कहीं निराशा ना हो. तो नॉन पॉपुलेशन से है.
तो उसमें हम नंबर बोलते 7,08,355। हाँ हमारे इंडिया के टोटल वोट है 97 करोड़ इतने लाख इतने थाउजेंड इतने हैं। मैं नंबर बोलना चाहता अभी मेरे सामने नहीं आंकड़ा, तो आपने पढ़ा होगा, पढ़ लेना। फिर उसमें कहते इतने मेल हैं 49 करोड़ इतने इतने मेल हैं, 47 फीमेल का नंबर 47 है। मोटे रूप में 47 के करीब कौन सी हैं फीमेल है, 49 के परसेंट मेल है। देखिए ये टोटल नॉन पॉपुलेशन है। हाँ, हिंदुस्तान की। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है, फिर स्टेट वाइज भी है। हो गया ना ये निश्चित। आगे उसके फिर स्ट्रेटिफिकेशन है नॉन पॉपुलेशन। वहां से जब हम सैंपल ड्रा करना है नॉन पॉपुलेशन से, हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हम बिहेवियरल साइंस वाले हैं, तो हमारे कल स्कूल है। मैंने डाटा कलेक्शन करने के लिए अपना सैम्पलिंग बनाया था, सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं उसको। तो हो सकता है उस दिन उसके बाद 4 स्कूल ना ही बन गए हों, जो 2 स्कूल नेशनल फार्मूले आके बंद हो गए हों, लेकिन कुल मिला के जो एरर है उसके हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास तो लेके आ जाना फिर। ऑलमोस्ट नोन है, तो उसका हम नोन मुड़ के चलते हैं। फिनाइट है, मैंने शब्द डाला कौन सी पॉपुलेशन है, फिनाइट पॉपुलेशन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टोटल एनरोलमेंट हमारे को पता है, हर सब्जेक्ट में हमारे को पता है। आर्ट्स का कितना टोटल बनता है, साइंस का कितना बनता है, प्रोफेशनल कोर्स का कैसे बनता है, फिर जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनका कितना बनता है। ऑल फिगर दे आर अवेलेबल विद अस। यूनिवर्सिटी पटियाला जहाँ से मैं अभी रिटायर होके आया हूँ, हर डिपार्टमेंट का, हर कॉलेज का नंबर वहाँ पे अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी का वहां तक पहुंच करना और उसको यूज करना वो अलग इश्यू है, लेकिन अवेलेबल है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पीएयू लुधियाना, कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कितने अध्यापक हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, किसमें कितनी सीटें हैं, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है फिनाइट पॉपुलेशन का। हो सकता है पहले राउंड में मैंने बोल दिया तो आपने रजिस्टर ना करा, अब मैं बोल रहा हूँ वंस अगेन। एनसीईआरटी और हमारे जो मैं एजुकेशन का हूँ, एनसीईआरटी का मैं ज्यादा जो करता रहा हूँ। एनसीईआरटी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा, बीच में यूनिवर्सिटी भी डिक्लेयर कर दी थी, नूपा बन गई थी, फिर नीपा पे आ गया है नाम उसका। ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में है, हाउस खास में, महरौली रोड पे। कौन से एनआई कैंपस बोलते हैं, एनआई कैंपस। तो एनसीईआरटी एंड नूपा, तो तू एक काम करना, तो वहां पे हमारे पास हिंदुस्तान के हर एक स्कूल का, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक का डेटा इन टर्म्स ऑफ सर्टेन फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो घाट पे तू गदोलिया पे जाना है के लिए हर एजुकेशन में आईसीए का है, वही तो कह रहा हूँ। आईसीए बोलते हैं उसको पॉपुलरली, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हर एक पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन का संख्या, उसके हर इंस्टीट्यूशन के अंदर अध्यापक, उसमें विद्यार्थी, आगे विद्यार्थियों के डिवीजन जेंडर वाइज भी, कास्ट वाइज भी, कई तरीके से अवेलेबल है। डेटाबेस और अवेलेबल विद अस, जब हम कहते हैं नॉन पॉपुलेशन है। लेने भी जानी पड़ेगी गदौलिया पे भी, ठीक है। जब नॉन पॉपुलेशन है वहां से हमने सैंपल कैसे लेके आना है, अच्छा मिलता है, कितना होना चाहिए है। चल तो फिर तू ये रखिया, फिर हम 80 पे ही आते हैं। लेके आना बाद की बात है, पहला है कितना लेके आना है। तो उसके लिए फार्मूलेशन आपके सामने है। स्मॉल एन इज डिनोटिंग सैंपल साइज, कैपिटल एन इज डिनोटिंग पॉपुलेशन साइज, 1 प्लस एन डॉट ई स्क्वायर। बात होगी मानसी से, ई स्क्वायर एरर मार्जिन है, कितनी गलती हम एक्सेप्ट करेंगे। 0.01 गलती के 0.01 का मतलब 99% ट्रूथफुलनेस, और 0.05 शुद्ध है, 95%। जिन दोनों जा रहे हैं अभी, तो सिंपली हम क्या, हमारे पास पॉपुलेशन होने आपके लिए होमवर्क है
1000 के पॉपुलेशन के ऊपर आप कैलकुलेट करके रख लीजिए, 10,000 पे कर लीजिए, 1 लाख पे कर लीजिए, 0.05 के लिए, 0.01 के लिए, अब यू विल शेयर द फिगर्स, तो यू विल कम टू नो के सैंपल साइज का बढ़ोतरी पॉपुलेशन साइज की बढ़ोतरी के साथ लिंक्ड नहीं है, उसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी होगी तो सैंपल साइज का यूज नहीं कि उतना ही बड़ा होएगा उस हिसाब से, जो 1000 के लिए या 500 के लिए हो गया, 2000 की पॉपुलेशन के लिए होगा। तो ये फॉर्मूलेशन को आप अपनी एक्सरसाइज होम एक्सरसाइज करके रखिएगा हफ्ते में सुन तो ले। तो दूसरा जो फॉर्मूलेशन है मैथमेटिकल कह लीजिए, स्टैटिस्टिकल कह लीजिए, क्योंकि आंकड़ा विज्ञान को देख रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव रिसर्च को देख रहे हैं, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अगले 5 बजे उठी थी। तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात आ गई है वो आ गई है कि तो अगर आप देखें फार्मूला n स्मॉल n इज इक्वल टू अननोन पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है अननोन है, बट वेरिएंस इज नोन। ऊपर नोन पॉपुलेशन था, जहाँ पे वेरिएंस नोन है। वेरिएंस नोन का मतलब वेरिएबिलिटी इम्पोर्टेंट है, किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की। हर रिसर्च में जो पहले दिन से बात करूं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बहुत कम सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं आएगी जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं। यूजुअली हर रिसर्च में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात रहेगी, सुन तो ले, मैं एक और बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कर जाएगी तो ये दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हमारे एनालिसिस के लिए सूचक हैं, इधर टुवर्ड्स पाथ एनालिसिस और स्ट्रक्चरल इक्वेशन एक बार मॉडल। पिया और मेरे से बोल रही है कि वो उसमें रहेगा। तो जो सेकंड फार्मूलेशन है उसके अंदर आपको स्मॉल जेड दिख रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए साइन जो यूज किया ग्रीक वर्ड है वही सिग्मा दिख रहा है, नीचे डी दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो जेड क्या है? वैल्यू ऑफ एनपीसी फ्रॉम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो भी ई ऊपर आ रहा था वो 0.05 और 0.1, वहाँ पे 0.05 और 0.1 से नहीं होगी कैलकुलेशन, वो होगी एनपीसी की वैल्यू 1.96 से और 2.58 से। मीन किसी ने इस फॉर्मूला यूज करना है तो उसको 0.5 पे करना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला G.05 का स्क्वायर करेगा, और जहाँ पे करेगा तो 1.96 को यूज करेगा। अरे पानी भी लाएंगे। 0.1 करना है तो ऊपर वाले फार्मूले में 0.01 की वैल्यू को स्क्वायर करेगा और नीचे वाले में 2.58 को रखेगा। मैं अपना पैकिंग करूंगा और ये लोग यहाँ पे करेंगे, फिर हम लोग और स्टैंडर्ड डेविएशन नेट है ना। हाँ नेट तो है मेरे पास। स्कॉलर बोलेगा, टीचर बोलेगा कि मेरे को क्या पता मेरा वेरिएबल कौन सा है, मैंने मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आएगी, आई डोंट नो। वहीं से 80 से ले लेंगे। As a student of psychological measurement and evaluation, as a student of educational research, let me tell you, any kind of psychological tool constructed and standardized by any scholar, any eminent personality all over the world has one mathematical central value, that is mean, and one standard value of variability, that is standard deviation। जो फार्मूलेशन अब हम साइकोमेट्रिक मेथोडोलॉजी में लगातार पिछले 60 सालों से यूज कर रहे हैं। 60 नहीं कहीं 70 साल कह लीजिए, 70 नहीं 80 ज्यादा हो जाएंगे, 60-70 साल से हम यूज कर रहे हैं। 50 ऑनवर्ड हम तकरीबन यूज कर रहे हैं, 1950 से आगे। कैसे? अब टी स्कोर देखते, टी स्कोर में मीन कितना है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 10। इसका मतलब मीन से ऊपर को जाएंगे 100 तक जाएंगे, नीचे जाएंगे 0 तक। तो मीन और एसडी का क्या रिश्ता है? 1/5 और 1/10। बताओ 50/10 1/10 है या 1/5 है? 50/10 है या 50/5? वही रिश्ता बन के आता है। जब हमने एनपीसी को कहा, बात करते हैं एनपीसी को हम छोड़ नहीं सकते। एनपीसी एक्सटेंशन, सॉरी, ये स्टूडेंट को
स्टैंडर्ड स्कोर का अभी कहीं से हमारा पहले शब्द का प्रयोग नहीं किया था, आ गया है। जेड स्कोर, जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के टेबल को देखते हैं तो हमने कहा कि मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक ऑलमोस्ट सारे केसेस आ जाते हैं। पागल है क्या? तो जब 3 स्टैंडर्ड डिवीजन पे हम वैल्यू नहीं, देखते हैं नहीं, एनपीसी में, वो कितनी बोलती है? पूछवा दे। वो बोलती है अगर वो ऐसा बोल जाए, वो जैसा बोल 496.865 और 87 निश्चित है। भाई तो ऐसे एनपीसी से वो वैल्यू निश्चित है। तो सैंपल साइज है, इसलिए वो सैम्पलिंग से जुड़ी हुई है, प्रोबेबिलिटी कर्व है। तुम किसी के साथ पता नहीं किसके तो बाकी केसेस कहाँ उसकी बाउंड्री से बाहर हैं। अब मेरा तो जो फिजिकल होने का वो होता है ना, तो स्टैंडर्ड डिवीजन है कम से कम 3-4 किसी लोगों के टूल साथ का, उसको उनके साथ हमने सामने से ऑलरेडी बताई मिनिमम थी और मैक्सिमम बेस्ट फिजिकल सीमाओं को बेनिफिट के निश्चित साथ, कर है लिया ना? है। क्योंकि स्केल मेरा आपका अगर 0 से वो 10 चीज नहीं होएगा है तो तो मीन उनके साथ 5 फिजिकल होएगा। होने का मेरा कोई मकसद ही नहीं बनता, तो मैंने मना किया। आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते फिजिकल हैं। नहीं, 0 से एक जैसे आपका कुछ लोगों के साथ में 10 आइटम का वाला स्केल है, फिजिकल वाला जैसनों वो का आता 0 है। से 10 तक हाँ, स्कोर का और उनके साथ 5 फिजिकल होएगा। वाला आ ही नहीं रहा, तो आपका जबरदस्ती 3 पॉइंट उनके स्केल साथ है, बैठो। 0 से 0 1 2 करा है, तो वही 0 से 20 पे चला गया। अब सेंटर 10 है, पहले सेंटर 10 में और इस सेंटर 10 में अंतर है। अब फिर आपने वही 10 आइटम का टेस्ट था, उसको 5 पॉइंट में ले गए, 0 से 4 में कह दिया, 0 से 40 है तो सेंटर आपका 20 हो गया। 1 to 5 में चले गए तो सेंटर 10 to 50 हो गया। सेंटर कहाँ आएगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। उस टाइम समझ नहीं रिमेंबर पाया था दिस इतना थिंग। ज्यादा, उसको मेरे को लग रहा है ये मैथमेटिकली बताया तो था हर ये एक साइकिल पीरियड वाली की टंकी है। जो नंबर ऑफ आइटम हम फिक्स करके चलते हैं, तो जितने नंबर ऑफ आइटम होंगी उसके हिसाब से मिनिमम स्कोर बनेगा और मैक्सिमम स्कोर बनेगा। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड 2 वो आपका मैंने बोला मीन नहीं होगा। नहीं अभी नहीं, बाद में अपन तो जिन विद्यार्थियों ने अपनी मास्टर्स में कोई ग्रुपिंग करो तो डाइजेशन बीच में में मैसेज आया कि कोई टूल लगा लिया है, जाके देखिए उसके अंदर मीन वैल्यू कहाँ पे है, परसेंटाइल 50 कहाँ पे है, टी स्कोर 50 कहाँ पे है, जो उसके नॉर्म में पड़ा होगा कहीं पे। जो भी साइकिल के टेस्ट है उसके जो मैनुअल अवेलेबल होते हैं उसमें चेक करिए कहाँ पे पड़ा होगा। वो तकरीबन सेंटर पे होगा। सेंटर से जल्दी सेंटर पे नहीं होगा, जल्दी सेंटर पे होने का मतलब कोइंसिडेंस है, उससे कुछ पॉइंट आगे पीछे होगा, मे बी इन डेसिमल, मे बी इन फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मे बी अप टू 0.5 or even more than 1 also sometimes, depending upon the nature of the psychological nature of the variable which we are trying to study. इसलिए इस सवाल को मैं दोहराई में लेके आया हूँ कुछ बातों को कि जो हमारे को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट which we are going to use to measure our dependent variable is known। सन वो नहीं है ना कोई बेटा अननोन नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, अननोन नहीं। पूछा नहीं, गांव में ही है जमीन। तो इसलिए नोन वैल्यू है, जेड का वैल्यू 1.96 है 05 के लिए 2.58, वो आप एनपीसी में देखोगे 1.96 आपका 95% ट्रूथफुलनेस को और 5% एरर को देखता है, और 2.58 आपका 99% ट्रूथफुलनेस को 1% एरर को देखता है। टू टेल टेस्टिंग में अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, टू टेल टेस्टिंग की बात भी अभी आएगी। मेन सिटी में जमीन भी है उनकी तो, और डिनोमिनेटर में डी है। जमीन तो भाई सबकी होगी उसकी। डी का बड़ा के डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। अगेन आई रिमाइंड यू, प्लीज गो थ्रू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। 2 महीना मतलब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल लिमिट थ्योरम के पे द्वारा जाइए, तो बुक नहीं खोलनी है तो नेट पे सर्च करिए, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जो मेरा मीन है, मैंने 2-3 लेक्चर में इस बात को कहा था, माई मीन फ्रॉम माई सैंपल with the tool maybe near the population mean or below it or above it, and the same tool used by researcher from A to Z may or may be near to my mean or may deviate from it।
they will have a tendency to deviate either on positive side or negative side, and mean of all these different samples are taken from different areas for the same population with the same tool with a fixed number will provide us the estimated value of mean population, which is still unknown because we are not able to go for parametric value of that particular variable or the focus issue which we are which are under the searcher's prerogative for explorations. In quantitative research, I will say, where psychometric principles are there. बधाई हो आपको कब है? फर्स्ट स्टेप कब है? अभी दोनों 8 को दिया है साला। मेरा So this means सेंट्रल लिमिट जोन के हिसाब से मैं अपने मीन को अगर मानना चाहता हूँ, डी को 0 मानना चाहता हूँ, तो मेरा मीन वही होए जो मेरी पॉपुलेशन का जहाँ से मैं सैंपल लेके आ रहा हूँ। तो इफ डी 0 then the researcher के लिए हाँ मेरे को वैसे मेरे पंचकर्मा पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं तो कह रहा पंचकर्मा ये आयुर्वेदिक वाले में उसमें भी अप्लाई किया था तुझे क्यों भाई? अबे अलाइड वाला था ना, अलाइड ऐसे मतलब उसी में साला भर सकते थे यार, मैंने भी नहीं भरा साला। अच्छा तू बता रहा था वो अलाइड में एजुकेशन वगैरह भी आ रहा था। एजुकेशन वाला सब था। सही है, अब तो सारे तीन ऑप्शन है। अभी छोटा हो गया ना, दूर से लगे तो रास्ता ही कह रहा नहीं, वो ऐसा होगा पीछे बैकग्राउंड बड़ा है ना इससे भी बड़े-बड़े पेड़ है ना जैसे। और फिर मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, वो लिखा है सैम्पलिंग एज पर डिजाइन। थर्ड बात ये है जो आप पहले पढ़वा दिया था मैंने कि वी आर कंसर्न विद काइंड ऑफ रिसर्च आई एम गोइंग टू कंडक्ट। अगर वो सर्वे स्टडी है तो सर्वे स्टडी में आपकी वाइडर कॉनोटेशन है, तो वहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन के लिए आपको नोवाज के लिए लार्ज सैंपल चाहिए। कितना? 1200 का, 1500 का, 2000, क्योंकि हर एक उस पूरी पॉपुलेशन को आपने वेरिएबल 1 2 3 4 5 हर एक पे मान लो लो एंड हाई में लेके जाना है, तो आपके पास गिनती कम होती जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछली एक एग्जांपल में भी शेयर किया था, क्रिएटिविटी का किस पे डिपेंडेंस था, एकेडमिक अचीवमेंट और जेंडर के ऊपर। तो 100 में से 16 से 3 4 के आए, 5 3 4 आए। तो थर्ड वेरिएबल आएगा, इसके मतलब सैंपल 100 से बात नहीं चलेगी, 200 का होएगा, तभी आपका थर्ड वेरिएबल के इंट्रोडक्शन की कोई स्कोप बनेगा। तो सैंपल साइज को अभी निश्चित करने की बात है, कहाँ से है, तो वो आपके डिजाइन के ऊपर है। तो कोलिशन है, तो कोलिशन में आपका सैंपल साइज का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उसमें दोनों में से हम किसी फॉर्मेशन को यूज करके आगे चल सकते हैं। डेफिनेटली जो कोलिशन स्टडी में डिजाइन होएगा उसके हिसाब से फैक्टोरियल डिजाइन वाले से उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन सैंपल विल बी लेसर। यार वो वाला 20 नंबर का और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और भी कम हो जाएगा। एज वी आर डिस्कसिंग ऑन द डे व्हेन वी आर डीलिंग विद एक्सपेरिमेंटेशन, तो वहां पर आपका क्लासरूम सिचुएशन है, एंड वी नो क्लासरूम सिचुएशन में 30 40 50 स्टूडेंट्स की सीमाएं हैं। वो नहीं है ना। अभी मेरे को नहीं पता क्लास में बैठे कि नहीं बैठे। जब वो कहते मेरा सैंपल बड़ा है 60 का, मैंने उनसे पूछा था, आज पूछ लेंगे, वो बता देंगे, खुद बता देंगे, जब बाद में बता देंगे कि उनका सैंपल कैसे आया हुआ है। उस तरीके से कि अगर आपने क्लासरूम में एक्सपेरिमेंटेशन करा है तो सैंपल साइज निश्चित है, स्कूल के अंदर करा है तो उसका सैंपल साइज निश्चित है। अगर आपने कम्युनिटी में करा है कोई इंटरवेंशन तो उसका सैंपल साइज निश्चित अलग से होएगा। तो जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं और वहां से सैंपल कितने की प्रोबेबिलिटी है, अब वो लिमिट्स उसमें कैपिंग है। आई मीन टू से आपने स्कूल के क्लास के अंदर करना तो क्लास में 30 35 40 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। आपने कम्युनिटी सर्वे करना है, मैं एग्जांपल दे रहा था, एक शायद वो चितकारा यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, उसने वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए कुछ हेल्थ टिप्स दिए, वो उनके प्रेरोगेटिव आउटरीच एक्टिविटी का पार्ट है।
तो उसने कितनी वुमेन को टारगेट किया, वो सैंपलिंग कर ली उसने, इतने गांव कवर करा, वो ओपन था, उसमें उसका सैंपल बड़ा हो गया, माइट भी 12-13 ब्लेज विजिट किए, लेकिन उसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की गुंजाइश नहीं थी, कंट्रोल नहीं थे, वो कॉजी एक्सपेरिमेंटेशन में चला गया था। ऐसा नहीं होगा, बट ये चीज हो सकती है। कहते नहीं हमारा एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपेरिमेंटल मत कहो कॉजी, क्योंकि आपने कोई कंट्रोल इंट्रोड्यूस नहीं किया। नहीं हमने ये देखा, मैंने कभी देखा, वो आपका विजिबल नहीं है। आपने जैसे वो आते थे आपके कैंप के अंदर ये जानकारी के लेने के हेतु, वो आपने गांव में हुक्का दिलवाया, कुछ लोगों को परसुएड किया, तो आपके पास ऑडियंस आ गई, आपने अपनी वीडियो प्ले कर दी, साथ में लेक्चर कर दी, मैंने यही करा, कहते हैं यही करा, पर डोंट से कि आपने स्ट्रक्चर्ड है वो। तो किसी गांव में पता नहीं 50% आया, कहीं 30% आया, जो लड़कियां या औरतें गई होंगी उसके अंदर, कि ऐसा तो है। डाउट से इट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू हमारे को पता है कि हमने 30 क्लास है, उसको 15-15 में डिवाइड किया है, 40 क्लास है, 15-15 आ गए, 10 हमारे हमने कहीं छोड़ दिए, एवरेज था, मार्जिन के केस थे, छोड़ दिए उनको। तो एक्सपेरिमेंट सैंपल सही। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडी, जो हम क्वालिटेटिव में शिफ्ट कर जाते हैं। वही तो नहीं समझ में आ रहा है, साला मैं कैसे दूंगा कितने लोगों का आपका, तो बेस्ट ऑफ ले सकते हैं, मेरा क्या लेंगे? एक एक कर लो केस स्टडी, सीएम साहब का कर लेते हैं, 40% था, ये हम सबका कर लेते हैं, ऑपोजिशन लीडर का कर लेते हैं, पीएम का कर लेते हैं, प्रेसिडेंट का कर लेते हैं, और क्या एक सड़क पे बैठा हुआ शुभमैन है उसका कर लेते हैं। मांग भी नहीं चल रहा है। ही इज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं तो हो गया मेरा खत्म। आपका पर्पज ऑफ रिसर्च क्या है? और चलते ही दैट मीनिंग वी आर सर्चिंग। मेथोडोलॉजी बाद में बनेगी, आपका पर्पज ऑफ रिसर्च दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। काइंडली रिमेंबर, पर्पज ऑफ रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड इट विल डिटरमिन व्हाट काइंड ऑफ सैंपलिंग you will be able to do for having authentic data with you and then going for analysis and interpretation of data. अब क्या भाई? तो ये सैंपल साइज की बात है। Now we come to the second slide. हाँ मेरे को भी याद है मुंह में ऐसा गिल्टी बन जाता है जी साहब। Please move to the second slide. वो अवर्जन ये क्वेश्चन अब हमने छोड़ दिया था। और उसकी स्मेल आगे कई स्केयर में दोनों बातें थी, इफेक्ट साइज कितना है उसका और अच्छा वाली बात ही नहीं, पावर क्या है। पहली बार में वर्जन हो गया था, दूसरी बार ये लोग फिर पिलाए थे। अगर आप पावर में जाएंगे, नीचे वाले को पढ़ेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट, पहली बार वाले फिर भी मैं कंट्रोल में था, उसमें आपको नजर आएगा, बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। मुझे भांग का ये खराब लगता है, मैं तो 24 घंटे रहती भारी रहता है। वो चढ़ा कैसे था भाई, हम लोग याद है साला स्कूटी पावर ऑफ द टेस्ट क्या नजर आएगा? मुझे पढ़ के सुनाओगी मेरे को? मैं बता रहा हूँ, मैं भी पिया हूँ, तो मुझे लगता है कि जब अचानक चढ़ा तभी मजा आता है। हेलो, Yes, sir. हाँ पढ़ के सुनाओ। Sir, तो इसमें लिखा है power of a test, probability of rejecting the null hypothesis when it is false, यस, आगे and probability of avoiding type 2 error. ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर आप लोगों ने अपनी एमए में पढ़े बधाई हो होंगे विनीत भाई, बधाई हो स्टैटिस्टिक्स में, while testing a hypothesis in case of t-testing। हमारी तरफ से भी बधाई दे दीजिएगा। नहीं पढ़े आपने चेक कर लेना, टाइप 1 और टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट, अल्फा एरर, बीटा एरर, अल्फा समझते अल्फा एरर और बीटा एरर, इसको पढ़ लेना, ये जुड़ी बात है। पावर ऑफ द टेस्ट ये क्या बोल रहा है? कहने का तात्पर्य है कि अगर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जबकि वो फॉल्स है, तो वो टाइप 2 एरर की ओर मूव करते हैं। टाइप 2 एरर का टाइप 1 एरर का जो मीनिंग है वो जुड़ा हुआ है कि अगर हम लोअर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख लेते हैं 0.05, तो 1.96 या इससे बड़ी वैल्यू जो होगी उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो उसमें हम ये आपने रिजेक्ट कर दिया, हमने कह दिया ग्रुप डिफरेंसेस आर देयर, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिफरेंसेस आर नॉट देयर। क्यों कर रहा है? जब ये बात आती है तो टाइप 1 एरर है। भाई अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अदर डिपार्टमेंट में सबका व्हाट इज अ टाइप 2 एरर? डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन हम डिफरेंस को मान के चल पड़े हैं बिकॉज ऑफ द लोअर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 1.96 वैल्यू टीम के केस में लोअर वैल्यू है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंसेस और एनी अदर स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों का आया
1.96। अभी क्या हाँ, अगर वैल्यू हम मैंने रख बोला लेते हैं कि हमने 0.01 पे ही टेस्ट करना है हिपोथेसिस, तो वैल्यू 2.2 भी आ गई, तो आपकी 0.5 तो अभी लगा सिग्निफिकेंट तो नजर आ लड़की रही की थी, आवाज थी, लेकिन मेरे को नहीं आ 0.1 पे रही वो थी। नॉट फिर मैंने सिग्निफिकेंट कहा है। अरे मुझे तो आशीष आप की कह आवाज देंगे कि वैल्यू ये नॉट सिग्निफिकेंट होगी 0.1 पे, इसलिए हमने मेरे आवाज आ हाइपोथेसिस रही थी, को आप फोन में तो मेरी एक्सेप्ट लड़की की कर आवाज लिया, आ जबकि रही थी। हाइपोथेसिस रिजेक्शन मांगता था। वो टाइप 2 एरर है। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट को आप एक बार पढ़ लीजिए, ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात आ जाइए उसी के अंदर, वो ये कह रहा है वो सब वो है, छोड़ो, आशीष को फोन दो। नहीं उसमें हाँ आशीष पढ़ को ही लेंगे, नंबर लाना नीचे है। अपने वो सब छोड़ो, अभी रुक जाओ, अभी बताएंगे बात नीचे करूंगा क्या है, तुमसे, पहले आशीष को फोन दो। वन टेल टेस्टिंग और टू टेल और तो टेस्टिंग। फिर पूछा कब पूछ रहा है। नल हाइपोथेसिस आपका कब लगता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? सॉरी, टाइप 1 और टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस होगा। कल कितने बजे? 4:30 बस वही वाला चीज है मैं कि रिपीट करता हूँ, चलना यार, टाइप 1 एरर और टाइप 2 भाई एरर मुझे सुबह टी मम्मी टेस्ट पापा आ के रहे केस हैं। में कल ही आ रहे कब हैं। होएगा, जब हमारा हाइपोथेसिस तू नल घर जा रहा था ना? हाइपोथेसिस नहीं, होगा। सुबह निकल रहा हूँ। अच्छा उन्हीं के साथ निकलेगा। नानी के साथ। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा तो वैल्यू और कैसे बहाना मिल देखनी गया है, लाइट यह करने का। बात हम फिर करेंगे। जब वो बेटा तुम्हें पता, वो लाइट का पता नहीं चलता है। जब तक मुझे पता हुआ जब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो तो हम टू बेकार हो टेल रहा है टेस्टिंग को यूज कर वो रहे शुरू होते शुरू में हैं। होता है, कुछ देर बाद बट वो एक बात है, ये साला उज्जवल ने ऐसी तैसी जब हम कराई नल थी। हाइपोथेसिस को टेस्ट अगर कर सब रहे कुछ होते पॉजिटिव चल हैं रहा होता है तो तो सब हम पॉजिटिव चलेगा। यार साला देखे ये लोग एकदम टू मनुष्य टेल बन गए टेस्टिंग को लेकिन यूज कर रहे होते हैं वही कि डिफरेंस ऑफ एरर मतलब साइकोलॉजी और इन अगर वो फेवर कुछ ऑफ ऐसा नेगेटिव बोल ए देते ना कि सांस और इन फूल रही फेवर है, ऑफ बी लाई उल्टी आ ऑन रही है, सबको एक आइदर तरफ से साइड शुरू ऑफ द होने लगता नॉर्मल है। प्रोबेबिलिटी कर्व, जैसे सागर और भाई उस के जो प्रोबेबिलिटी का जो उज्जवल ने 5% का एरर पैनिक करा मार्जिन दिया था है कि यार तुमने क्या वो कर दिया दोनों सागर तरफ भाई को, बराबर शांत चला रहो, जाता है, ऐसे बात 2.5 करना। तो भाई 2.5, गंदे और इसलिए चिल्लाता है, वो हंसने लगा बंदे, 4750 पहले है, तो हंसने लगा। और 95% बनता आ जाता है, जो चांस हंस फैक्टर रहा है कि टी वैल्यू को जब हम बंदे तो पीने लगाते का हैं बहुत पक्ष हो गया। तो वो अगर इतना दोनों चुप मीन बराबर है तो और हंसता जीरो है होगी टी तो वैल्यू, M1 माइनस M2 जीरो हो गया उसको देख के तो हंसी आया, हमारा उसको टी देख वैल्यू के जीरो बोला हो खाली। गया। फिर अगर M1 और M2 में कोई फर्क आ गया थोड़ा सा, तो वहां से टी वैल्यू बढ़ती है, और जब टी वैल्यू बढ़नी शुरू होगी वो कितनी बड़ी बने, ताकि कितनी बड़ी ये बने पक्ष नहीं करता ताकि था, वो वो उसको चढ़ हम रहा 0.5 पे सिग्निफिकेंट कह सकें, है। किसी से बहुत तो सीरियस वहां पे सिचुएशन हम में यार। अल्फा एरर कमिट कर रहे होते हैं। जब मार रहा था नल मेरी हाइपोथेसिस को बात 0.5 मेरी पे बात टेस्ट करना है, तभी वो और बताया अगर हमने उसको कहा अरे हमने तब 0.1 आदत पे तो टेस्ट दीपक भी करना नहीं है है। और वैल्यू हमारे पास डांस वांस 2 भी पॉइंट किया कुछ आ गई है, कुछ मार तो दिया था हमारे बेचारा लिए दीपक, याद है? वो उसके रूम हाइपोथेसिस पे ही आदित्य एक्सेप्टेड दीपक है, के रूम पे जबकि डिफरेंस उसके सर पे वहां मार पे दिया। अच्छे खासे है। तभी एक दर्द करी आया था। वो मुझे बोल बड़ा रहा था मार पेचीदा दो सवाल मार दो, है, ऐसा कुछ कर रहा था, टाइप मार 1 दिया। किसी एरर और और को टाइप मारने के 2 लिए एरर बोला का, था, और उठा उसी फील्ड को मार दिया। नहीं, फील्ड नहीं, अरे क्या है अपना वो, अकेला जाके सो गया था रूम वन टेल और एक टू टेल लड़की थी भाई टेस्टिंग वो का। हमेशा तो वंस एक अगेन टू लड़की थी टेल मुझे, टेस्टिंग इज प्योरली वो एंड हमेशा प्योरली फोन से ऐसे ही इन बात केस ऑफ करती थी null मेरे को बोल के। hypothesis, अरे मर्द ये सब और पता one है, ये tail सब तो बताया testing नहीं। is in हाँ case पहले बुलाया of तो ले, अब तू यार directional स्टोरी सुना रहा फोन यूपीएससी पे। से वाला बता था, इस पे यूपीएससी वाला। आपके क्वेश्चन की उम्मीद है आज यूरिया के में चीट सेशन रहा में था या उसके कौन बाद सी के मिट्टी सेशन। छीट रहा था, कह रहा यूरिया छीट रहा है। जमुआ में ना गिट्टी भर फिर के मैंने वो शब्द यूज किया है ऐसे लिमिटेशन वर्सेस डिलिमिटेशन। हर रिसर्च प्रोसेस में पहले डिलिमिटेशन आती है। बेंच वहाँ हंसी आया डिलिमिटेशन का लगती है। मतलब कि हमने बाउंड्री वाल को खड़ी करना है, हमारा फोकस क्लियर हो जाए। मैंने इंटेलिजेंस पे काम करना है, तो इंटेलिजेंस की मेरी परिभाषा क्या है, और जो टूल ऑफ मेजरमेंट में लेके आ रहा हूँ वो क्या कहता है, उसकी डिमांड क्या है। जो सही पेशेंट आता है उसको भी लोग पागलों की तरह ट्रीट करते हैं। इस बात को मैं दिखाना है रिपीट भाई, करता जो शुरू बताया एक लड़की थी ना, फोन बतियाती रहती थी हमेशा। सबको दिखाना हूँ। जो बात। टूल ऑफ मेजरमेंट मतलब है मैं उसे जब देखा 4-5 घंटे रहा, जो 4-5 मैं घंटे लेके आ डेली रहा की हूँ, डेली जा रही है, क्या कान वो बात उसी बात करता को है, मेजर वो कर बात रहा कर रहा है। है। ऑपरेशन मान ही नहीं डेफिनेशन के है भाई, हिसाब एक दिन से नया फोन इंटेलिजेंस की सैकड़ों डेफिनेशन है। क्या ही सही। मैंने गार्डनर का थ्योरी लेके मूव कर रहा हूँ, तो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस के क्या नहीं होता? मेरे को आंसर मिलने शुरू होंगे, तो मैं डायमेंशन वाइज स्कोर करूंगा, फिर टोटल मल्टीपल इंटेलिजेंस स्कोर तो जनरेट ये कर तो नहीं लूंगा। होता ना, चूतिया के बनाना, वो तो है ही है, होता ही नहीं है ठीक। अगर मैंने एसपीएम यूज किया है साइकोलॉजी तो केसेस तो होते ही नहीं है, वो तो एक ही दवाई स्कोर बन चलती के रहती है। आएगा। और ग्लोटा का बस टेस्ट यूज किया तो एक ही स्टार्टिंग स्कोर फेज बन में के रहते हैं ना, आएगा। जहाँ पे सिम्टम्स बहुत तो मेरा माइल्ड होता पर्पज क्या, है, मैं आप डिफाइन रेगुलेट कैसे कर सकते करता हो, हूँ तुम उसको स्पेशल उसको भी ट्रीट नहीं इंटेलिजेंस कर है। सकते।
और अगर एब्स्ट्रैक्ट उसने है चीजें नहीं जहाँ फॉलो वो करी, फिर मतलब आगे अगर जो उसने नए दवाई नहीं शब्द है, करी, नए तो वो तो नहीं बढ़ते कहेंगे, जाएगा। है तो दवाई के पुराने। साथ में रेगुलेट इमोशनल करते इंटेलिजेंस स्टार्टिंग गोलमैन फेज का, में। उसको मेजरमेंट स्टार्टिंग में फेज लिया में है बहुत कम होते हैं जिनको यही। पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ जनरल इंटेलिजेंस आई है, और उधर आपका ई आई है, फिर स्पिरिचुअल कोशेंट भी आ गया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है तो वो भी आ गया। कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है। एक रीजन ये भी है, और एक रीजन ये, हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं आती कि मैं तो मतलब मेंटल हूँ करके। दिस मीन्स कि आपका मेजर में आप डिलिमिट करने का मतलब है कि आप सीमित कर रहे हैं। जब आपके रिजल्ट्स की वो तो प्रूव इंटरप्रिटेशन होते ही नहीं है आएगी ना, वो तो क्लियर है तो उस उसमें। इंटरप्रिटेशन में मेरे को पता है इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है, क्रिएटिविटी का क्या है। गार्डनर के कंसेप्ट को लेके चले हो, या आप लेके चले हो स्टर्नबर्ग को लेके चले हो, वर्धन को लेके चले हो, किसकी ताकि जो मेजरमेंट में आपने टूल लेके आए हो वो टूल की परिभाषा करता है। तो आपका जो मीनिंग ऑफ रिसर्च है उस टूल में इस्तेमाल की गई डिक्शनरी और वोकैबुलरी के हिसाब से होगा, आपकी मर्जी से नहीं होगा। रिमेम्बर दिस थिंग। रहेगा ही वो। महंगा तो रहेगा, अगर एक बार को ओल्ड मॉन्ग वगैरह होता। जो वेरिएबल तो को पहले तो हम उतरी जाती तुरंत, गिवन मुझे पता है। स्टैंडर्डाइज साला टूल से मेजर पैसा कर है कि रहे हैं, उसका तो बीच उस बीच में टूल कुछ की अटका जो है, तो मम्मी डेफिनेशन पापा है, को बोलने कुछ पैसा परिभाषा है, जो उस मैं टूल एक में बार दे पी रखी लिया है, किचन मैं में, उसके मतलब बियॉन्ड बात खाना नहीं खा कर रहा हूँ, एक बार सकता पी हूँ। लिया, मैं तो घर पे कोई बता 20 देता हूँ मेरे को आइटम पीने के लिए। 40 आइटम मैं लेके आ रहा जैसे हूँ, अगर मैं तभी मैं तो पी रहा वहां हूँ से कि आ अगर हल्का भी रही होगा है। तो घर पे पहुंचूं, घर के पहुंचते तो इसलिए पहुंचते याद उतरी रखिए आएगी। वो आपकी हाँ, डिलिमिट वैसे है, मैं तो वैसे भी बोल दूंगा कैसे मैं घर आपने पे कि एक डिलिमिट बार मेरे को करना फोन है। लगा लेना, उठा लेना, सैंपल में उठा लेना। डिलिमिटेशन है, लेकिन सोता बहुत गंदा भाई। गवर्नमेंट स्कूल, पिछले प्राइवेट बंदे के स्कूल। सोया मैं था, कहूँगा जब मेरा बेहोश किया गवर्नमेंट था स्कूल साला, के डाटा है, ताला इसके सर पे तो खोपड़ी वो मार सही है के। प्राइवेट साला, क्यों मैंने लूंगा, क्योंकि वो हाँ यार क्या ये सही किया मैंने, कम एसी कर लिया। नहीं तो साले अगर मैं नशे में स्ट्रक्चर होता डिफरेंट है, लैपटॉप पे बहुत फोन जगह चला जाता आपको मेरा। स्टडी मिलेंगे गया था वो गवर्नमेंट वर्सेस बंदा, प्राइवेट, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, ठीक है। और आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द अंदर गया बंदा, सिचुएशन पढ़ प्राइवेट ही नहीं और रहा वो था। साला आर शोन आई बेटर। खोल ही नहीं रहा है हाँ, भाई। कुछ होगा। देर से पीटे नहीं तो अगर खोला। मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, रख दी ये और कौन सी लैपटॉप रिसर्च वैपटॉप है, गया भाई मेरे कहीं। को याद करा देना, मैं पढ़ के बता दूंगा। आज नहीं तो कल। 12-12 ब्लू हजार स्काई का था। रिसर्च, ताला मारा सर पे आके लड़ी भाई। सुबह पता चला, सुबह क्या ब्लू पता है। स्काई सुबह, और रिसर्च, मैं भी भूल गया, मैं सुबह से लेटा हुआ था इधर, नीली ऑफिस में आसमान गया, मैं वाली लेटा था। कोट यार पता है यार, दर्द शोर। कर रहा है थोड़ा। क्या बोलते हैं कि ताला पड़ा था तुमको। तो डिलिमिटेशन हर रिसर्च में और साले डिलिमिट यही बात करते हैं उसके हम। उसके पापा आए थे, डिलिमिट करते हैं मतलब फोकस उसने बनाते स्टोरी हैं। सुना दी उसने। एंड टू हैव मोर नीतन को फोकस वी हैव नहीं नहीं भांग के डिलिमिटेड नहीं बोला, सरकारी उसने स्कूल लेने का, गहरा ये प्राइवेट भांग के लेने तो का, बताया किस ही नहीं। टाइप ऑफ स्कूल है, उसने या बस इतना ही बताया वेरिएबल। कि इतना गहरी नींद सोता सरकारी है, स्कूल ऐसे लेंगे बोला। हिमाचल है ठीक तो है, उसमें वो भांग का बताता चल तो हिमाचल ठीक। बोर्ड ऑफ भांग स्कूल पिया था ना उसने। एजुकेशन करप्शन में बैठा है, दारू रुपी है तो किन्नौर से लेके वो हाँ चंबा तो तक साला के और सब उसे स्कूलों को बताई देख तो रहा है। अंकल बोलते हैं मैं ये तो उसको उसके एप्लीकेशन को लेके डाल चलूँ, दी के एक लेक्चर में भी। लक्षण नहीं है। अगर मैं सीबीएसई का स्कूल लेके चलूंगा तो वही तो साले वो उसका सीबीएसई उसने के लिस्टें इनकम्प्लीट बन बताई के थी ना भाई आएंगे। कि क्यों नहीं, ओल्ड मॉन्क की वजह लेकिन से। है तो ज्ञान पीठ भाई अंकल। सरकारी स्कूल उसमें शामिल नहीं होंगे। भाई बंदित की गांड मार दी। पता चला मुझे यार कि मुझे यूनिवर्सिटी भाई एजुकेशन ऐसे का कौन डाटा बोलता लेना है है यार, ऐसे कौन तो मैं और वो भी कहूँगा ऐसा भी गवर्नमेंट नहीं कि को पहले यूनिवर्सिटी एक लेनी तो बार है जो ले प्राइवेट लेनी है। लेते पंजाब में रैपो बन जाए, हमने सब कुछ काम बोला करवाए एक बार तो को पंजाबी रहता। यूनिवर्सिटी पटियाला पीएयू का, पीएयू को कई बार निकाल देते थे क्योंकि रेजिडेंशियल है। पंजाबी यूनिवर्सिटी का अपने कोर्स नहीं कराते हैं अंडर ग्रेजुएट के, लेकिन अब कराने लग गए हैं। यहाँ पे कल कैसे जेएनयू चलाएगी। कराती थी, पीएयू कराती थी। हमने कहा कोर्सेज वाले इंपॉर्टेंट है, इंद्रलाल चला गया था रेजिडेंशियल भाग के। फैसिलिटी का होना अरे नहीं मैं होना जो मुझे वो इम्पोर्टेंट मिल नहीं गया है। मैं जो देख नो डाउट वी नो लड़ुआ में हॉस्टल अवेलेबल है भैया इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बताया तो इसको। आज लड़ुआ क्या होता है। अरे नहीं बताया था ना, नहीं बताया। तो अरे डिलिमिट यार करना तुम्हें और लोग टहलने लिमिटेशन में जाते जाना। थे पीजी के ग्राउंड में। लिमिटेशन क्या है, वो आपकी वो तो रिसर्च गड़ुआ, की वो बेसिक गड़ुआ, प्रॉब्लम वो है गड़ुआ। कि हम कुछ बातों में ये क्या हमारी था। सीमाएं रहती हैं। मेजरमेंट की एरर है, वो मैं हम तो ये एरर भी ट्रेन में मेजरमेंट लगा में था, कर रहे थे, लिमिटेशन ही है। ट्रिप पे मिला के। ट्रेन पे वो ट्रेन में सैम्पलिंग लगा एरर है, वो गड़ुआ मेजरमेंट एरर है, होएगी ही। तो अच्छा जा गया कितनी था। होएगी, कितना मैं मिनिमाइज कर मेडिटेशन सकते वगैरह हैं, करने लगा हूँ ना, रिसर्चर को एग्रीकल्चर में जाता था कॉन्शियस ना, होना तो पड़ेगा। ठंडा हवा चलता लेकिन है ये क्या है, तो चल के, एरर फ्री नहीं हो सकता तो वहीं पे एक पिलर टाइप का बना हुआ है, मतलब पिलर मतलब जैसे हैंडपंप वैंपम्प वाला ऐसे सीमेंटेड का। बिकॉज ये वी आर बैठ के डीलिंग अपना विद मेडिटेशन सैंपल कर रहा था, स्टडीज आँख खुला और तो देख रहा सैंपलिंग था एरर मुस्कुरा होगी रहा ही, था। ये अरे लिमिटेशन है। बढ़िया। ठीक है, तो और एक साइकिल गया वो सैंपलिंग एरर होगी, ठीक है, एक बेशक मेजरमेंट मुस्कुरा एरर रहा था। होगी। तो फिर हम जो लोग अगली एरर है मैं बहुत दैट इज मुस्कुराया, और देखिए लास्ट ठीक वन भी लग रहा था, लिस्टेड। मैं तो लग भी नहीं रहा था वो। वो कौन सी एरर है, तेरे उसको डेली हम आते बोलते हैं हैं एक बार लिमिटेशन यही ऑफ सर्विस स्टैटिस्टिकल अच्छा मेथड्स। अच्छा, फिर मैं ऐसे बोला और उतरा फिर चला गया। मतलब इतनी बात हुई। लिमिटेशन ऑफ परसों साला फिर से टहलते हुए स्टैटिस्टिकल आ रहा था, मेथड। तो छोटी जो वाली भी एरिया से हम निकला और फिर उधर टूल ऑफ बढ़ा एरिया की टेक्निक तरफ, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा द मैं, पर्पज ऑफ पीछे से साइकिल से लगा दिया, आगे फिर साला साइकिल एनालिसिस यूज करते हैं। आगे पीछे
बीच में बगल में साइकिल लगा मीन मोड मीडियन,
स्टैंडर्ड डेविएशन है, पगलियां मार के लगा कोलेशन है, टी टेस्ट है, अनोवा है, जितनी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं हर एक टेक्निक की एक खूबसूरती भी है और उसका स्टैटिस्टिकल मेथड का एक लिमिटेशन। नहीं गया था मैं जो कि वो है चूतिया वी मस्ट रिमेम्बर कि हर टूल का या हर टेक्निक की एक लिमिटेशन भी है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि उस टेक्निक की लिमिटेशन को हमने ध्यान में रखना है और उसके लिए जो बेसिक कुछ एक दो तीन बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा काम हम रहता है तो इसलिए नहीं आ पाता। स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपको एक प्रोसेस है जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को हम कहते हैं सर्वेंट ऑफ लॉजिक है, इट इज सर्वेंट ऑफ लॉजिक एंड ओनली हैज वैल्यू इफ इट वेरीफाई clarifies and major relationship that have been established by clear logicalness। कितने बजे गए? 7 बजे। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करता हूँ कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस क्या है कि जो आपका सारा सर्वेंट ऑफ लॉजिक है और ये तभी ठीक है अगर वो वेरीफाई करता है, क्लैरिफाई करता है और रिलेशनशिप को मेजर करता है जिस पर पे लिए हमने वो करा है। ये बेसिक फीचर है इसका स्टैटिस्टिकल मेथड का कि हमारे लिए मेथड इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एनालिसिस। हम क्या करना चाहते हैं, एनालिसिस इम्पोर्टेंट नहीं है पर पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है। अगर मेरे को परसेंटेज एनालिसिस से ही मेरे रिजल्ट दिख रहे हैं तो मेरे को स्टैटिस्टिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। कई क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में, कई स्टडीज में क्वालिटेटिव तो पॉसिबिलिटी है ही है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कई जगह हमारे को जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। कुछ एक ऑर्नामेंट नहीं है, ये एक टेक्निक है। इफ नीडेड आई विल यूज इट, इफ नॉट नीडेड आई विल नॉट यूज इट। बट व्हेन आई विल यूजिंग टी टेस्ट, इसकी अपनी लिमिटेशन है, कोलिशन इसकी अपनी लिमिटेशन है, काइस्केर उसकी अपनी लिमिटेशन है, हर एक टेक्निक की अपनी लिमिटेशन है। इस बात को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। बट वी मस्ट रिमेम्बर कि जो भी डाटा एनालिसिस है उसकी जो भी टेक्निक हम लगाते हैं, एक हम सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग के सिलेक्शन में कहीं गलती कर बैठते हैं, एक हम मेजरमेंट एरर कर बैठते हैं, तीसरी एरर हमारी कहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो भी एरर प्रोन होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। कभी टाइप 1 टाइप 2 एरर, 1 टेल 2 टेल टेस्ट, ये बहुत सी बातें हैं जो इनका एक तरीके का मिश्रण है जिसको हम कई बार प्रॉपर्ली नहीं देख पाते। तो अब इसके टॉप पे आ जाइए बच्चे, टॉप पे फोकस करिए। अरे बिच्छू बहुत चल रहा है भाई टॉप पे जो हमारे को काइस्कर में हमने रखा था नहीं, इफेक्ट साइज पे, इफेक्ट साइज पे मतलब यही ना, और फिर क्या कह रहा है, इफेक्ट साइज उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, इफेक्ट साइज। हाँ, पढ़ दोगे क्या लिखा है? Yes, sir. हाँ जी। Effect sizes, how meaningful the relationship between variables or the difference between groups is. It is indicative of the fact that how much practical significance of a research outcome. हाँ, वो मैंने बात मंगलवार के सेशन में भी शाम को बोल रहा था कि डिफरेंस आपका 5 का है, वो 5 का डिफरेंस किस मैग्नीट्यूड में चल रहा है, वो उसको कैसे देखना है, वो आपका सारा किस में जाता है, इफेक्ट साइज में। उसकी एक फॉर्मुलेशन है, हर एक टेक्निक का एक इफेक्ट साइज है। आपको जो रिसर्च पेपर देख रहे होंगे, आप देखेंगे उसमें कहीं इफेक्ट साइज की बात बार बार आती है। लिमिटेशन जो ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करी है वो इसलिए करी है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर वो उसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि इफेक्ट साइज उस वक्त देता है, प्रोबेबिलिटी को देता है कि जो आपने कर रहे हैं क्या वो कितना सही है या नहीं है। दो ही बातें, इधर कोलिशन स्टडी है या आपके पास कौन सी स्टडी है,
ग्रुप डिफरेंसेस के मीन डिफरेंस देखने हैं तो आपको टी टेस्ट और नोवा से मूव करना पड़ेगा। कोलेशन देखना है तो आपके पास प्रोडक्ट मोमेंट कोलेशन और स्पीडमैन रूम है। अब कम टू दैट पॉइंट पावर ऑफ द टेस्ट। वहां आके वो बैठ गया मैसेज कर रहा है कि भाई आओ मैं तुम्हारे बोलिए। साथ बैठा हूं। Power of a test in parametric versus non-parametric, probability of rejecting the null hypothesis when it is false, and probability of avoiding type 2 error. हाँ, अभी हम जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात कर रहे थे, पावर ऑफ टेस्ट एक उससे जुड़ा हुई बात है। इसमें इधर से लिखा स्पेशली कि हमने पैरामीट्रिक स्ट्रेस लगानी है कि नॉन पैरामीट्रिक लगानी है, which is to be preferred to. Question is what kind of data I have. Question is what kind of data I have. If you remember, we have 4 kinds of measurements, स्किल जो मेजरमेंट जिनको हम बोलते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल जो डिस्क्रीट डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और कंटिन्यूअस सीरीज और रेशियो स्केल, ये नॉट कंटिन्यूअस इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल जो आपका इंटरवल कंटिन्यूअस सीरीज को देखती है। डाटा को जहाँ हम कंटिन्यूअस मानेंगे जहाँ उसको मानेंगे डिस्क्रीट। जो वेरिएबल है आपके पास, आपने जनगणना में जेंडर को देखना, जेंडर में आपका मेल और फीमेल है। या अब की कैटेगरी में अभी शायद आपने देखा होगा और पंजाब में शायद वो काउंट हो गया है, जो भी वोटर लिस्ट आई है पंजाब की टोटल वोटर लिस्ट रिलीज करी है, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में 5000 शायद 5000 कुछ लोग हैं who have registered voters who have told that we are transgender। तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है पंजाब का, पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया। मेरे को पंजाब की खबर आ गई थी, बाकी को मैंने ध्यान नहीं दिया है कि इतने मेल वोटर हैं, इतने फीमेल वोटर हैं और ये ट्रांसजेंडर है, स्प्रेड ओवर ऑल पंजाब। चाहे इनकी पॉकेट्स हैं कहीं कहीं, इनको ये डेरा बोलते हैं, इनके अपने मंदिर बने होते हैं, तो ये डेरा कल्चर में रहते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं, ग्रेगेरियस नेचर है, लेकिन फिर भी ये इनकी गिनती अब सामने आ गई है। ये गिनती एक तरीके से नॉन पॉपुलेशन है जो एज पर वोटर लिस्ट अवेलेबल है हमारे पास। तो ये हम वर्कशॉप जेंडर में कैसे आएगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, पूरे हिंदुस्तान में आया है, हर स्टेट में आया होगा। रूरल अर्बन है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब है ये हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं जो नॉमिनल स्केल पे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आप मेल को या फीमेल को या ट्रांसजेंडर को ये नहीं कह सकते 1 2 3, ऑर्डरिंग नहीं कर सकते कि मेल सुपीरियर है या फीमेल सुपीरियर है या ट्रांसजेंडर सुपीरियर है या इन्फीरियर है। तीनों को एट पार हॉरिजॉन्टली रखेंगे 1 2 3। नंबर का क्रम का कोई चक्कर नहीं है, वो सारे ही क्या है एट पार है। क्या ऑर्डिनल आ गया, वहाँ पे आपकी रैंकिंग है, प्रेफरेंस है आपकी, वहाँ पे कहीं पे वैल्यू जजमेंट है, वेयर वी से गुड बेटर बेस्ट 1 2 3। वो 1 2 3 नॉमिनल वाली नहीं है, या जिसमें ऑर्डरिंग है। वही तो कह रहा हूँ मैं, अच्छा गुण है तो गुड, लोएस्ट बेटर बेटर और बेस्ट दी बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। माड़ा गुण है पुअर पुअर पुअरेस्ट। पता तो चलता नहीं था कौन क्या है। वो स्किल जो तो उनको हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि डाटा हमारा किस स्किल पे जा रहा है। तो एनालिसिस की टेक्निक उस हिसाब से बन के आएगी, डाटा किस रूप में आ रहा है और हम क्वेश्चन कौन से रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। तो डाटा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, या वो इंटरवल स्केल पे है या रेशियो स्केल पे है, तो उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स डिसाइड होएगा ना, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली लिमिटेशन में जाएंगे। मतलब बाहर जा तो रहा हूँ, पर्पज ऑफ रिसर्च क्या है, लेके जा रहा हूँ, दैट इज बेसिक क्वेश्चन। बहुत मिले थे। हमारा इकोनॉमिक लेवल कितना अच्छा है, इनकम लेवल ढूंढेंगे, हमारा एजुकेशन इंडेक्स कितना बड़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना बड़ा है, हमारा वेलबींग इंडेक्स कितना बड़ा। तो ये मेजरमेंट का सवाल है,
तो पॉलिसी रिसर्च में भी मेजरमेंट उतनी ही कारगर है जितनी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं में भाई जिम वाला पार्टी कारगर दे है। रहा है नॉन वेज वो आंकड़ों के बिना हम नहीं पूरी चल सब सकते हैं, रिमेम्बर दिस करना थिंग। है। और आंकड़ों का विश्लेषण का जरूरी नहीं कि स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होगा, आंकड़ों को बिना स्टैटिस्टिक्स में भी प्रयोग में लाया जा सकता है और उसको करने की अपनी विधियां हैं, अपने तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन विद विच आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर रिसर्च, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। वो साले खाते खाते ही फिर मैं एक पेज 3 नंबर पेज बाद में भेजा था, उसको पहले ले आइए प्लीज। अच्छा हाँ। तो कल उसने मेरा लाइब्रेरी का काम कराया था, तभी मैं कह रहा है इसको कहाँ देखा है ये नहीं, इसके आगे आया होगा, अरे मेरा आगे आईडी चलते जाओ, लाइब्रेरी कार्ड ये 3 पेज है, इसके बाद भेजा था, मतलब सही वो कराया चलते जाइए, इसको बाद में लेंगे, आगे चलिए। संपर्क हैंड रिटन है, वो हैंड रिटन है, हम लॉकडाउन समझ के सर आगे कि यही नहीं आया हुआ? मैं तो कल के बाद से खतरा फील नहीं नहीं, ये भी नहीं, एक पेज और है, मैंने बाद में भेजा था, सुरक्षित नहीं हूँ ये है, यस यस, लौटने तक तो ठीक नहीं था। अभी आएगा, आगे आगे आगे, हाँ हाँ, बच्चे लौटने को भी तुम खतरा। भी लिखो यार ये है। उससे बोलते हैं इतना दे कंपेयर हमारे क्या है इसके अंदर लिखा गया? नहीं, ये नहीं, हमारे लिए भी तो दिल्ली ओहो। आता क्या लाइब्रेरी? सर 2 हैंड रिटन है और 3 प्रिंटेड है। किसके साथ आ रहा है? एक हैंड रिटन और नहीं आया आपके पास? बता। नो सर। ओके ओके, चलो उसको परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करूंगा। बताना एकदम बताना उसमें इतना लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, कहीं पे वो कम्युनिकेशन में गैप रह गया होगा, सही सही बताना, वो है मैंने उसमें रखा था सही सही बताना एकदम कि जब हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते सही हैं, बताना एकदम। स्मॉल सैंपल साइज, लगा तो था। लार्ज सैंपल साइज, मीन, मैंने देखा भी था स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर नंबर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सबके साथ लगा हुआ स्टैंडर्ड एरर ऑफ ये मेजरमेंट तो बंदूकों में बोलता था। और कह रहा शुभम का श्रुति कॉन्फिडेंस इंटरवल। सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। सॉफ्ट कॉर्नर दिखता समझ रही हो होगा आप? तो तारीफ करता था तो उस स्लाइड को मैं नहीं भेज पाया, या कोई भाई, नहीं दिखता कि हम मेरे लोग तीन को बात कर कैसे रहे हुआ, होते तो कुछ स्किप बोलता कर था गया, उसको बाद में बनाई थी मैंने इसके बाद। बंदूक को देखता। हाँ, तो मैंने उसमें क्या कहना चाहता था कि जो हमने पूछना बंदूक मंगलवार को एक्सरसाइज कर रहे थे, जो अचीवमेंट की और इंटेलिजेंस के स्कोर्स की, वो आंकड़े थे स्मॉल सैंपल के, मनी को कॉल करके पूछते हैं और वहां से हमने मीन एसटी निकाले, तो उसमें जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो n-1 से आएगी, या स्टैंडर्ड डिवीजन n-1 से आएगी, या स्टैंडर्ड डिवीजन n-1 से आएगी। वो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी छोटी छोटी है, उनको हम नेक्स्ट टाइम डील करेंगे। तभी उसने हाँ, एक फॉर्मुलेशन मैं कहीं स्किप कर गया था, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कैन यू राइट डाउन, एवरी स्कॉलर मस्ट राइट डाउन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। इस पेपर को भी हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। वो तो ठीक है, तेरे में खाने पर लोगों को लग रहा था, ये लग रहा था लग रहा है तेरा नहीं चल रहा था व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट? जो एक स्कोर आ गया, जो एक वैल्यू कोई आ गई मेरे पास, तो वो कितनी सही है उसका मूल्यांकन करना होगा, तो मेरे को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जैसे एज अ टीचर, एज अ स्कॉलर, एज अ स्टूडेंट, एज एन ऑब्जर्वर, मैं कुछ देख के आता हूँ, मेरा देखना कितना सही है, करवा रहा था बढ़िया हम क्या मस्त तो उसका आंसर मैथमेटिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट बता देती है। मैं सर के सामने बोल रहा हूँ कि हमारा तो उसकी फॉर्मुलेशन हम शेयर करेंगे नेक्स्ट राउंड में, स्टार्टअप किया है क्योंकि बिना फॉर्मुलेशन उसको समझाना मुश्किल है। उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का भी वही रोल आ रहा है, और साथ में लायबिलिटी ऑफ टूल, दोनों एरर जो हम करते हैं सैम्पलिंग में, एरर में एक सैम्पलिंग एरर कर लेते हैं, एक कर लेते हैं मेजरमेंट एरर, दोनों का मिक्सचर कहाँ पड़ा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट में। उसकी टिपिकल एग्जांपल हमारे पास ये है कि जब मैं कामयाब होके आता हूँ, मैं घर में आके बोलता हूँ कि मेरे 55 नंबर आए हैं, तो मैं 55 से कभी आगे बढ़ा नहीं अपनी लाइफ में, 55 60 इससे ऊपर नहीं गया। मतलब 5600 तो रुपए में मेरे माता पिता मेरे को पूछते थे 55 तेरे अपने हैं? मैं कहता हाँ अपने हैं। फिर वो कहते नकल तो नहीं मारी, और नकल मारने वाले कुछ और तो नहीं करा, अपने हारा करी, या गैस तो नहीं किया कोई, तब गैस का स्कोप ही नहीं होता था। उसका खुद की जब मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन जब स्कूलिंग पढ़ा, तब गैस तो होता नहीं, अब तो गैस आ गया ना, जहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, कोई शॉर्ट आंसर आ गया, रिकॉल का आ गया, वहां पे गैस लगा सकते हो।
तो बेंच एक गाड़ी में वो बिजनेस और कर दिया है। हमारी साइकोलॉजिकल नहीं, टेस्टिंग मेन सारी इस गैस पर्पस पर पे पे नहीं किया टिकी हुई उसने, है। मेन इस पे नहीं किया, आपके मेन उस पास आइडिया 4 पे किया है ऑप्शन है, आप कि 4 मेरे ऑप्शन में से कनेक्शन एक है को टिक नेटवर्किंग लगाना के, है। उनसे बात आप करूंगा, वो बीच में आंखें कमीशन मीच के देगा। ABCD में से ए को सिलेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, आपके 20-22 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, अरे मेरे से बोला मैं चाहे इधर आपको करवा कुछ भी दूंगा, नहीं उधर आता। करवा दूंगा, तो एक ही गाड़ी से इधर उधर बिजनेस कर लेगा। अबे ये बात है ना, उसका लिंक है ना। आप सिलेक्ट मैं हो जो के बात चल कर पड़ो, रहा बोल हूँ, रहा है तो फिर बात है ना, लगाओ कमीशन नहीं लेता ना, तो रिस्क पूरा लेते खर्चा हुए, कोई सीधी नहीं तो अभी लेता होगा हो सकता है आपका फिर 80 में गाड़ी पहुंच ऐसी जाए, दे पर देगा 80 आने का मतलब ये भी नहीं कि वो आपका तुम्हारे बहुत लिए अच्छा बात ही स्कोर क्यों है, करेगा फिर वो? क्योंकि आपने एक वो बात ही स्ट्रैटेजी क्यों की करेगा? टेक्निक से इनडायरेक्ट अपने ही आंसर बनेगा देने वो, की क्योंकि कोशिश जैसे की है। हमसे तुमसे ना ले वो अलग बात है, तो लेकिन इसलिए थर्ड पार्टी कोई हम और फिर है। उसमें वो वो जोड़ स्टैंडर्ड के एरर ऑफ करेगा, मेजरमेंट वो बताती जैसे है जैसे यार की हो कि रही है, आपका जो उसको ऑब्जर्व्ड जैसे यार वैल्यू लगी है, कि गाड़ी है, पैसे जब दे मेरा रहा ऑब्जर्व्ड वैल्यू 8,000 आपका दे क्यों देगा, कहूंगा, 2,000 मेरा तो ले अपना लेगा, कनेक्ट ऑब्जर्व्ड करा रहा है। मेरा बारे मेरा कोई वैल्यू है, कितना सही है, वो कितना ट्रू है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वर्सेस ट्रू वैल्यू के बीच में लाल जो वाली, एक रिश्ता है, लाल वाली लाल नहीं है उसको तो हम कैसे येलो देखते हैं, दैट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एरर कहाँ ऑफ है सर? अच्छे ये एक अच्छे हुआ जिसको मैंने वो सोच रहे कि स्किप कर अच्छा दिया। मैं ये अभी जब लेक्चर खत्म होता है मैं उसको दोबारा से प्रिंट लेके वर्षा जैसी लग रही तो है। उसको मैं अपलोड कर दूंगा नान आपके किया है पास, बेंचो, उसी में वो पूरा लिखा है सर्कुलेशन में आ जाएगा। नहीं अगले सेशन के लिए होमवर्क भी है, और सब बढ़ गया जाएगा कहाँ? सारा उसे डिपार्टमेंट से उतर रहा था तो ऐसे करके देखती जा रही थी, इतना लुक दे रही जैसे मैं उसके नोट्स पे बोलूंगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए भी। नमस्ते तो बताओ। अभी तक मैं ये मैं अपना बोल रहा पिछले हूँ सेशन की बातों नान हेलो को वाला हाय रिव्यू बेबी, किया है। अरे हेलो बोलते जैसे मतलब हाय इस हेलो। मुकाम पे आज हम अबे छोटे अभी है तो मतलब अगले बात बढ़ पे रहा है, जाने बढ़ेगा 6 महीने जा रहे हैं। ठीक से इमेज बन नहीं तो हम बोल रहे हैं कि अब हम टूल की बात, सैंपल की बात, ये एनालिसिस थोड़ा की सा बात, उसमें रहती है ना थोड़ा सा कि भाई बहुत सुंदर है। भास्कर में हमने इंटरप्रिटेशन की बात कहीं करी। और पढ़ना है आकाश जी मेरे को पहले नजर आए थे बीच में, वो उतना शायद में बैठे कम होंगे। से कम जैसी नॉर्मल भी ऐसी जब उन्होंने छोटी कुछ कहा था काइस्कर का ठीक तो लगे, इंटरप्रिटेशन इतना कैसे मेकअप तो करना है, देखा ही नहीं मैंने होगा 2 किसी को ने। इंटरप्रिटेशन करके दी थी। ये मुझे लग रहा है टी स्मार्ट का भी वाली करा लगाती था, होगी तो मेकअप बहुत की जाती है। नोवा का किया और था। क्या भाई, लगती तो जो है। दिन हम यार नोवा आज की मैं कार से लेने जा कैलकुलेशन रहा हूँ नहीं करी थी, तो लेकिन हम उस पॉइंट डेली पे आ में गए थे कार देखते हैं। हाई इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट और एवरेज इंटेलिजेंट, बताया मुझे तो ग्रुप मैंने। फॉर्मेशन कर दी थी। तो एक ही डाटे को कई तरीके से जब हम एनालिसिस में लेके आ रहे होते हैं, तो मैं तो जो वो भी कंपनी एक आता था तो टेक्निक मेरे है, अंकल अंकल बुढ़ा बुढ़ा रहता जिसको था, अब जो हम सुबह कई 8 बार बजे का है का पहले तो शब्द था वो उठता था ब्रश करता था, चला ट्राईएंगुलेशन जाता था का। एक दिन इस शब्द को ले लीजिए और फिर अपने क्वेश्चन आंसर में लेके आई, थोड़ा पढ़ लीजिए। ट्राईएंगुलेशन और मिक्स्ड मेथड डिजाइन, कुछ ज्ञान दोनों मेरे बातें। ठीक है कहा कि अच्छा अच्छा एक ट्रायंगुलेशन का वर्ड है, एक वो मिक्स्ड उठा मेथड जल्दी डिजाइन का आज वर्ड है, बुरा समझ करके दोनों बाल को वाल आप थोड़ा देख सही लीजिए। करके हाँ, ये वो हम कुछ करके थोड़ा नेक्स्ट सही से कपड़ा पहन के गया तो बेंच उसको थोड़ा पहले वाले बैच में लेक्चर बुला में लिया कुछ था वो, बातें इसकी करेंगे। मतलब उसको बताया ही नहीं था तो पहले वाले बैच में चली गई, मुझे लगा बेंच, मुझे ये बात पता नहीं चली कि वो कल से फिर से आएगी टाइम दोनों पे। में कुछ अब मेरा समानताएं हाथ हैं ऐसा चुआ तो हाथ कि बाल एक मिल ही जा रहा है, रिसर्च बाल पूरा करते ऐसे वक्त इधर आप उधर उठा इधर। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का इस्तेमाल करते हैं, या कितना लेता है? आप क्वांटिटेटिव में 2 तरीकों से डाटा लेके आते हैं। जो क्वालिटेटिव में करते हैं तो आप 2 तरीके से डाटा लेके आते हैं। अबे जब आप एनालिसिस करने सीख बैठते जाएंगे हैं, ना आप एक फिर उसके बाद लड़के वो उड़के तो मतलब प्रैक्टिस जल्दी कर सीख लें। जाएंगे, वो टेक्निक नहीं, कई 50 दिन टेक्निक सिखा से है एनालिसिस करने की बात ठीक है, तो वो करते तो हैं। सीख ही नहीं पाओगे जब ज्यादा वैसे। अगर अपने पास कार को है ना तो उतना एक ही ज्यादा डेटा सीखने सेट पे से अगर तुम्हारे पास अपनी अचीवमेंट और कार है तो 15 इंटेलिजेंस के दिन बहुत बीच में जो रिश्ता है उसको जैसे देखने मैं के सीख लिए लिया हूँ थोड़ा बहुत, तो अपने प्रोडक्ट गाँव में मोमेंट तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन, लगेगा। देन स्पीयरमैन रो, वन वे नोवा, मैं सोच टी रहा था टेस्ट, इसी चार काइस्कर, से 5 तरीके की 10 टेक्निक तक लगा के देख रहा हूँ। 4 तारीख से लेके 10 तो वो तारीख के बीच इन में अ वे डायरेक्ट सीख जाऊंगा। ट्रायंगुलेशन है। ठंड लगेगा। एनालिसिस के अंदर भी हम ट्रायंगुलेशन केवल मतलब डाटा कलेक्शन के लिए काम नहीं आती, वो आगे एनालिसिस और डाटा के लिए आता है। वो मैं कभी किसी क्या बुक पता आप घर पे रेफरेंस से गाड़ी चलाना पड़ आपसे शेयरिंग करूंगा जाए। ट्रायंगुलेशन का उसके कॉन्सेप्ट बाद भी। 1 साल बाहर रहने के और बाद मिक्स्ड मेथड डिजाइन हमारे एक एजुकेशन में प्रोफेसर है सही क्रेसवेल, सही समय सीख गए। उनकी बुक मिक्स्ड मेथड डिजाइन पे सबसे तुम भी स्टार्टअप खोल दो अच्छी एक। किताबों में से संदीप को उस पता किताब क्या को हुआ हम है? बेहतर बढ़िया मानते कहीं हैं। जा नहीं रहे, क्रेसवेल, सी वगैरह से है बोला कि लेके जाने CRESSELL, क्रेसवेल का। अगर आप देखना वो भी अच्छा चाहेंगे पैसा दे आपको जाती है, नजर वो आएगी ज्यादा वो सही है पता अबे है। अच्छा मिक्स्ड मेथड अच्छा पैसा डिजाइन। ले देखिए जाती है, किताबें और भी हैं, पैसा लगा लेकिन के बेंचो सभी अच्छी होती हैं किताबें, लेकिन ठीक है, कुछ पैसे बातों को तो ले लेते भाई बहुत पैसा। के लिए कुछ किताबें ज्यादा मेरे अच्छी बड़े होती पापा है हैं, उनके बैंक तो में इट इज इन जान दैट वे पहचान के मिक्स्ड मेथड लोग, वो लोग साले यही वाला काम मान करते हैं। ली कई वो नुक्तों से बड़े पापा को बेहतर कहीं आना किताबों जाना में से रहता था मानी तो भाई जाती है ड्राइवर जिन्होंने होता मिक्स्ड मेथड दूसरा डिजाइन लोन पे का, लिखा है। तो वो बता रहा था कि जैसे बात हो रही थी, बता रहा था कि उसके पास 3 फॉर्च्यूनर है बैंक में।
5-5 साल क्या की अब एज मैं में जहाँ लोन पे पे 5 मिनट भरवा का दिया, ब्रेक चाहूंगा ठीक है, कह और रहे आप 50,000 लोगों रुपए को आता है, निवेदन है कि अभी तक 50,000 जो रुपए तुमको मैंने महीना कहा मिलता है, है तो तुम नेता क्या दिया? उस पे किसी का कोई नेता अपने सवाल पैसे जवाब से आ गाड़ी जाए खरीदेगा नहीं, तो आप ठीक है, प्लीज 50,000 रुपए देख का बंडल लीजिए कर देगा क्या ताकि हम कब नेक्स्ट गाड़ी सेशन खरीदेगा को भाई? चल हाँ, पड़े। 50,000 रुपए दे करके गाड़ी मंगाते हैं वो लोग, और तीन Yes, चार sir. एक आध दो नेता पकड़ लिया, हाँ सबका जी, गाड़ी भेजता है और कह रहा है कि 30,000 का लोन बना है, अपने ठीक है, उसको महीने का 30 या पता है 35,000 कुछ लोन बना है कॉलर उसका। को उनको कह दीजिए अर्निंग कि भी हो रही है, उनका खुद की कोई गाड़ी भी है। भाई इस 20,000, बात पे अभी 15-15,000 तक रुपए उसको कोई सीधा सीधा जमा क्वेरी कर या रहा है, क्वेश्चन 30,000 है रुपए डालता जा रहा है, इसको हम यहीं पे रिजॉल्व कर लें। और 5 साल बाद उसकी गाड़ी हो बट गई। यही है कि बस थोड़ा सा उसमें कनेक्शन पहले बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो कनेक्शन बना दिया है डायरेक्ट तो ना, नहीं दे सकता, कनेक्शन बना दिया। बट ये भी शादी वाला पता है क्यों सही लगता है? टूर वाले में सारे वो डैमेज ज्यादा होता है। क्या पता कोई पावरफुल नेता ले लिया, ले हड़प लिया, जाओ मार अबे हड़पे का अपने नाम पे थोड़ी ले रहा है तुम्हारा गाड़ी, और वो लोग नेता लोग ऐसे बकचोदी करते भी नहीं ना, फंस जाएंगे अभी पता चला किसी लेकिन नेटवर्क सही कर रहा है, नेटवर्क पर्सनल ले ले। ले ही लेते हैं भाई। और रियली और क्या कहते हैं, उनको तो जरूरत ही पड़ती है ना भाई, इधर से उनके घर कोई रिलेटिव में कोई बेटा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उनको उनको करवाने गाड़ी तो उनको कम से कम अरे चाहिए यार होती है 50 तो यार। रैली निकलती रहती है, हाँ, हर दूसरे दिन कोई किसी से मिलने जा रहा है, चाटो गाड़ी। यूनिवर्सिटी वाले भी नेता हाँ, छात्र संघ इनको चाटो गाड़ी आगे पीछे चाहिए ओह, होता है रोला बनाने के लिए, उसी का तो पैसा लेते हैं वो लोग। फॉर्चूनर जो रहती है, 2 फॉर्चूनर डाल दिए, 2 इनोवा ले लिया साला क्रिस्टा, जैसे खरीद लेता है। 3 खरीद चुका, 3 फॉर्चूनर है बहन चोद। फॉर्च्यूनर इस समय 40-40 की आ रही है। 40 की स्टार्टिंग हो गई है बहन चोद। तो टॉप मॉडल साला 50-55 के 60 के आसपास पहुंच गया, 60-65। मेरा दोस्त है बहन चोद, तब लिया था तो 25 की स्पोर्ट्स मोड मिल गई थी, 25 लाख। हेलो, हाँ कोई भाई, क्वेश्चन 5 है साल पहले की क्या? बात आपका कोई है, क्वेश्चन पुराना होए? बात है, जब नई नई आई थी No, sir. अभी तक अदरवाइज किसी को कोई प्रोसीड, जब से उठ question गई नहीं है है. ना ये, तब Yes, से sir. I ज्यादा think we can proceed. ज्यादा ये साला No यूपी वी बिहार queries. कैन की प्रोसीड। गाड़ियां बहुत हाँ, नो Yes. क्वेरी। बोला। ओके, उसके कुछ फीचर्स हैं भी, लोग कहते हैं जो उसको चला लेता है फिर वो कोई और गाड़ी बैठना नहीं चाहता। अगर उसका वो हमारे पास जो जो सेशन रखा गया है गर्मी वाला दिया, वो ये था तो वही रहता ही है, हम्म, क्या सकती गाड़ी है। कि पेपर राइटिंग, सर्च पेपर तेरे राइटिंग बगल में कैसे ही रहता है करनी क्या? है। उसी से क्या आता तेरे है। बगल में मैंने रहता उस है? बात को हिमांशी की कॉलोनी बगल में रहता है, बदल मेरे दिया है घर थोड़ा सा के 2 अपने कॉलोनी हिसाब से। मेरे कॉलोनी। उसी से आता है। तो अगर आप वो पहली स्लाइड पे आ जाओगे, जो पहली स्लाइड मैंने भेजी थी, पहली स्लाइड 4 फ्लोर है, कि मैंने गाड़ी कहा बनवा था दी। रिव्यू ऑफ रिलेटेड अब लिटरेचर, वो उसी कोचिंग खुलने वाली है उसी में। पीछे हटिए रेंट से नहीं देना पड़ेगा, अब या तो सही है। रेंट है या तो उसी का है, रेंटल और पीछे लेकिन मतलब हटिए, वही हाँ, खड़ा होकर बनवा और देंगे। पीछे हटिए, अपने हिसाब से बना। नहीं पीछे हटना मतलब होता है कि आगे भाई, जाइए, बड़ी बात थोड़ी आगे ना, जाने। लोन पास करवा लिया अब होगा आगे भाई। पीछे करने में थोड़ा बहुत पहले तो पहला ज्यादातर वो ऐसी चीजें लोन पे ही करवाते नेहा हैं ने लोग। शायद शेयर करा के नहीं किया, लायबिलिटी चीज, वो मैंने व्हाट्सएप फॉर्च्यूनर में ही डाला लायबिलिटी था है ना, जब उनके। टाइम में बहुत पैसा आया था तब ऐसी गाड़ियों तभी में इन्वेस्ट खरीदता है, करता है। तो मतलब बट ये Okay, बनवाने sir. So वगैरह और actually इन ये पे तो आज लोन ही की पास slides करवाता है है, जो इनमें पैसा खुद topics का ही लगाता नहीं, है नीचे। ज्यादातर मैंने आज के सेशन की लोग, किसी बात इंसान नहीं कही मतलब थी, बिजनेस उसमें मेरा वगैरह एक सवाल ये था, चलिए वो नहीं उन्होंने वो भेज पाई होंगे, कुछ स्किप कर गए होंगे किसी बात पे, ऑनलाइन ठीक है जी। इतने मैटर मैटर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, वो भी उनको फॉरवर्ड नहीं किया उन्होंने, क्या है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो हमें ऐसी लग रही है मेरी वो ये था पेपर राइटिंग का। अब हम कई बार हमारे स्कॉलर्स खासतौर पे जो एमफिल तो अब खत्म ही होगी है, कहीं कहीं कोई मिनट बचा हुआ है जो वो एमफिल पूरी कर रहा है, किसी कारण बचा हुआ एमफिल होगा, अदरवाइज ये अब खत्म हो चुका है आफ्टर NEP 2020। तो सीधा स्कॉलर आप मास्टर के नेट क्वालिफाई कर PhD के एंट्रेंस टेस्ट को देके PhD वर्क में एंटर करता है और उसको कोर्स वर्क करना पड़ता है। कोर्स वर्क में जो कराया जाता है वही एमफिल में कराया जाता था। उसकी फॉर्मेट बदली है, तरीका बदला, लेकिन वही बात है, वो भी 1 ईयर है, ये भी 1 ईयर है। जो एमफिल में थोड़ी थ्योरी ज्यादा थी, प्रैक्टिकम भी था, इसमें थ्योरी भी है प्रैक्टिकम भी है, ज्यादा कम जहाँ पे फिर क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट है। नहीं, अब आपको मैं सवाल कर रहा हूँ कि हम कई बार ये कहते हैं कि बहुत थोड़ा है, तो थोड़ा कितना है कि क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट है, मैं किसको थोड़ा मानता हूँ, कहते बहुत है, बहुत गलती है, कितनी गलती है क्वांटिफिकेशन का। वो जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं थोड़े का ज्यादा का, तो उसकी मेजरमेंट का क्वेश्चन है कि उसको हम किस तरीके से किस चीज को थोड़ा बोल रहे हैं, किसको ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो जो PhD कोर्स वर्क का UGC ने इंट्रोड्यूस किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी ही है, एक उसमें प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं,
आप सिनॉप्सिस लेके करेंगे, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, बुक रिव्यू करेंगे, एक पेपर का रिव्यू करेंगे, डिपेंडिंग आप किस यूनिवर्सिटी कर रहे हो। तो इस तरीके से काफी उसके अंदर कंटेंट दिया रखा है। तो और पिछले कुछ सालों में वो ऐड कर दिया एथिकल क्वेश्चन डाल दिया, उसका पेपर में डाल दिया यूजीसी ने पेपर में। अभी हम प्लेगरिज्म की बात करते हैं। अगले या लास्ट प्लेगरिज्म कितना है, जितने भी जनरल छप रहे हैं हमारे पेपर से आप छप के आ रहे हैं, कहते हैं आपका प्लेगरिज्म कितना है उसमें। प्लेगरिज्म की बात आती क्यों है सवाल, मैं उस बात पे सीधा नहीं आ रहा, मैं इंडायरेक्टली ये पूछ रहा हूँ। एवरेज भी सही है और स्पोर्ट है वो। मैं जब पढ़ रहा हूँ, मैं कोई नॉलेज जनरेशन के प्रोसेस में हूँ। हमारा हायर एजुकेशन में जब हम रिसर्च प्रोसेस में आते हैं, वी आर मेंट टू जनरेट, वो तो बड़ी है बहुत। क्रिएट एंड डिसमिनेट नॉलेज। पहले मैं एक्वायर करूंगा, एग्जिस्टिंग बहुत नॉलेज बड़ी है है, भाई, इतनी तो बल्कि फिर नहीं मैं चाहिए। उसके उसी सिंथेसिस में साइज में जाऊंगा, बताया वो, मेरे को फिर लगी भी उस सही थी, उसका के एवरेज बाद सही है मैं ऐसे रिसर्च चलाने के में अगले भी। स्टेप पे जाऊंगा। नहीं उसके नहीं बाद रॉयल मेरे पास कुछ एविडेंस जाएंगे, जो मेरी धारणाओं को, जो मेरी कल्पनाएं हैं, अच्छा उनको वो वो दिल्ली या में, तो दिल्ली में उसको सही है, सही कह रहा है। सिद्ध करने, प्रूवन की तरफ लेके जाएंगी, जो देखता हूँ कहते हैं मैं भी पहले एक्सेप्टेंस कभी ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस है, स्टार्ट करूंगा जो पहले। उनका रिजेक्शन हो जाएगा। नहीं तो वही एक्सेप्टेंस और लूंगा, मेरे को रिजेक्शन वही ऑफ करनी है हाइपोथेसिस बाइक तो। क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो उसमें रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का मसला पहले बिल्कुल रूम पे डिफरेंट है। जाएंगे वो फिर 05, 01 लेवल के पे हाँ चलते हैं हम। चले यार। उसकी कई इंट्रिकेसी को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, अरे कर लाइट सकते ले हैं, लेंगे यार करेंगे भाई कभी यार। आने वाले वक्त में, अगर कोई बिल्कुल नहीं। डिस्कोर्स हमारा शुरू होता है। पढ़ाई नहीं हुई, कल मैं पढ़ाई अ, करूंगा, आज मैं पी लूंगा तो कल लाट जाट पे चला तो आपको कहना पड़ेगा 05 पे सिग्निफिकेंट है, 01 पे सिग्निफिकेंट है, और मीन डिफरेंस कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका लिमिट क्या थी मीन की, और टूल की मेजरमेंट लिमिट क्या थी, जो इफेक्ट साइज और पावर में पड़ा हुआ है। इसलिए उसको मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया था कि विदाउट दैट, तो वो स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी में कई क्वेश्चन है हमारे पास, इसलिए उनको मैं अभी टच और नहीं कर ज्यादा पा उसको रहा। पड़ जाएगा भाई, और किसी ज्यादा। और सेशन में उसको लेक्चर देखना पड़ेगा। अच्छा वो मैथ वाला। तो वो अलग बात है वो बिल्कुल ही। लेकिन इतनी बात बड़ी सिंपल सी है चले जाना टाइल कि प्लेगरिज्म का सवाल आएगा क्यों। हमारे पास अभी चल आज बे की चल, डेट में मोबाइल वो उड़ डिस्चार्ज भी गया हो है रहा है। फ्रॉम, उरकुंड था पहले, हमारे उरकुंड आया था। अब ड्रिल बिट चल रहा है, बहुत यूनिवर्सिटी ने ड्रिल यार बिट को सिंगल तो ऑप्ट कर आती नहीं है दिया बट है। यार। अरे भाई तो सिंगल ढूंढना पड़ता है, फिर उसमें ऑप्शन दे देते हैं कि ये गाइड विल बी वो सिंगल द अल्टीमेट पर्सन टू हो एक्सेप्ट सकता और है। रिजेक्ट अरे द आती रिपोर्ट, लड़की और बहुत सारी वो लड़कियां हैं उसमें से प्लेगरिज्म में आता कि नहीं आता लड़की है, ग्रुप में आती है। उसका फैसला बहुत फिर सी गाइड उसमें पे अप्रोच छोड़ करता हूँ। देते हैं। अरे यार मैंने एक्चुअली यूजी में जिसके देखा पास था, भी वो जो कहीं हमने होएगा अपने जिन्होंने पता करा नहीं रखा डाला होगा, था पे, अदरवाइज मैथ मेरे मैंने आई विल लाइक टू शेयर एक दो या तीन मेरे बोलता था जो जिसको प्लेगरिज्म का टेस्ट कहते हैं, उसको डिसेज ये मैं कहा जो यार आज के जो लौंडे का बड़े सबदार होते नया हैं, बढ़िया प्रोग्राम जाके चल बात रहा कर है लेते अब। हैं, अब तो मैं जो उधर भी आ गया, अब भी हाँ, नहीं हूँ। मैं उसको ड्रिल बिट, अब समझ में आप मैं जिगरा उसको भी टाइप लिटिल बिट का भी कुछ बोला, ड्रिल बिट है वो, अभी ये हमारी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर रखा है। एक कोई और भी आ गया था, टर्न इन टर्न करके था, टर्न इन टर्न चलो फिर जैसा नाम था। मिलते हैं। हैप्पी होली। तो वो हमारे पहले सीमाएं थी 30%, हम पंजाबी में अभी शायद 30 पे रुका हो गया, 30% कम बढ़ करते हैं। और मैंने अपने स्टूडेंट्स का, स्कॉलर का, अगर 30 से कम आ गया मैंने कभी चेंज नहीं किया, बिकॉज आई न्यू कि जो कुछ लिखा है उनका अपना है, उसमें कहीं भी से उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। इस बात को मैं रिपीट करता हूँ कि जब मेरे स्टूडेंट का जो प्लेजिज्म के इंडेक्स के हिसाब से 30 से कम आ गया, मैंने उनको साला एक्सेप्ट कितने किया। खचड़ा है यार। 26 है, 17 है, 10% है, 8% है। मैंने कहा मेरे को पता है कि ओरिजिनल है, क्योंकि जो काम करा गया आई एम सेटिस्फाइड एज अ सुपरवाइजर, आई एम सेटिस्फाइड कि ठीक है। अब कई यूनिवर्सिटी उसको 10% पे ले गई है, तो 10 पे लाना पड़ेगा। जब मेरे को वही सवाल आएगा कि 26 से मेरे को 10 पे आना पड़ेगा, तो मैं देखो ना कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो वो दिक्कत कैसी है, वो दिक्कतें बहुत ही दकियानूसी हैं।
चलो यार चलते किसी हैं, पॉलिसी थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट को करेंगे। कोट मैंने भी किया, आपने भी हाँ? किया, तो वो किसने पहले की पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपका अवेलेबल है। कितनी बातों को आप इग्नोर करोगे? पॉलिसी डॉक्यूमेंट को मैंने अपने मेरे प्लेगरिज्म में के इंडेक्स की वैल्यू कल तो में हो शामिल जाएगी हो रहा भाई। है, तो आई विल डिलीट इट। जो उर्कंड भी कहता था, ये जो ट्रिलिबिटा है ये भी कहता है कि आप उसको इग्नोर कर दीजिए या उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। अरे तो यार। कितना करना है? तो गाइड हाँ इज भाई कॉम्पिटेंट पहुंचाना के हर वो आदमी सारे मैटर बहुत को वो ही मान जीरो लो, पे वो तो लेके ये जा चल सकता रहा है। है। वो तो ज्यादा ही हाँ, अब मानसी को, चाहे मानसी उसके को चलती है। उसके अंदर वो बताइए वो तो सही है गलत है, वो अपने उसके ऊपर बॉय छोड़ आई दिया है। बॉयफ्रेंड के तो साथ इतनी में भाई एक्सरसाइज चल हम रहा है। करा रहे हैं, उसका तो तो चलिए ये पहले से ही चलता है। क्वेश्चनेबल है। आई एम टू हाँ पता नहीं है say like this with my experience at my back for the last around 40 years in research after doing my PhD. हाँ मतलब ज्यादातर तो वही प्लेगरिज्म कब है? तो सिमिलरिटी इंडेक्स क्या? वो सिमिलरिटी इंडेक्स है लिव इन कि ही आपने जो कंटेंट यूज किया है, या आपने जो आर्गुमेंट दिया है, या आपने जो किसी प्रकार से भी कुछ हाँ तो लिखा वो है, स्कूल की बात वो आती है। किसी पहले दूसरे उसी व्यक्ति दिन में लिखा बर्थडे थी ना हुआ है, उसकी। उससे वो मैच करता उसी है, तो दिन क्या उसको वो कहते हैं सिमिलरिटी इंडेक्स कि वो बताते हैं। और वो खुद बता रही थी कहती है बर्थडे के रिपोर्ट पास कि आती है। डोंट से इट इज प्लेगरिज्म, वो कोइंसिडेंस है कि वही है। अब आपने उसको कोट किया है कि नहीं किया है, वो वहां से वो उसका काउंटिंग शुरू हो उसी जाता दिन है। मिले थे सिमिलर वो 8 बजे तभी बता रही थी। बेसिकली इट इज नॉट प्लेगरिज्म, इट इज हाँ मतलब सिमिलरिटी भाई इंडेक्स। हम सबसे प्लेगरिज्म वर्ड का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है डस्टबिन जैसा लग कि रहा जब है। हम डिटो वर्बेटम उसको लिख लेते हैं विदाउट कोटिंग दैट पर्सन जहां से तू लिया गाड़ी गया से है, आएगा घर से? या कोई पेपर छप के आ मैं गया है, तभी कह चाहे रहा था अखबार तुरंत में जाने या की। जर्नल में है या मैगजीन में या किसी बुक में, मैंने बिना बैग कोट किए उसको लिख लेता हूँ और उसको अपने शब्दों का क्लेम करता हूँ, वो वजन तो कम वो क्यों लग रहा है मेरे प्लेगरिज्म है, बैग में यार? वो अनएथिकल प्रैक्टिस है। वो रटवा सही है। कहाँ से कि एक तो हाईवे नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ एथिक्स, गाड़ियाँ ट्रक एथिकल फ्रक ना चले रे। कंसिडरेशन जो हमारा लास्ट इशू था, कहाँ है? इसमें पहले लेके आया हूँ कि एथिकल तो कंसिडरेशन अभी तू क्या जा है रहा है क्या कि रुकेगा? मैं ठीक से पढूं। मैंने पेपर पेपर कहाँ राइटिंग चलेगा करनी यार? है, मैंने थीसिस राइटिंग करनी है। मैंने करेक्ट थीसिस फरमा का कमा चल राइटिंग रहा से हूँ पहले बहुत मैं कुछ सस्ते 2 4 5 थीसिस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, कम से कम हाँ हाँ सभी स्कॉलर को हाँ हाँ। जो अभी सुन रहे हैं, उतना आगे रहता और है, उनका कम मेरा कहाँ थोड़ा निवेदन है शांति कि जो रहता है। इन्होंने थीसिस वर्क करना अब है वाला या कर रोडवा साला लिया हमको है, रिस्की लगता वो है अपने दिल पे हाथ रख नहीं के बहुत, कहें कि मैंने कितने और थीसिस दूर या भी लगता डाइजेशन है। लाइब्रेरी में देखे हैं, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक, या कितनी किताबें मैंने अपनी लाइफ में देखी है। या स्कूल में किताब देखते पहले से आखिरी पन्ने तक खींच देना देखते खींच थे, देना। तो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आकर मैंने कितनी बुक्स देखी हैं, पहले पन्ने से लेके आखिरी तक किस किस के पन्नों का मैंने इस्तेमाल किया है अपनी स्टडी के लिए। बैग जो पीएचडी स्कॉलर है उसने पीएचडी के कितने थीसिस देखे हैं, चाहे उसके अपने एरिया से, बट टॉपिक ही नहीं कहूंगा, एरिया से जुड़े हुए हों या अपने उसके एरिया से ना भी जुड़े हुए हों, ये चीज देखें वो थीसिस कैसे बन के आया हुआ है। तो जो थीसिस का निर्माण या डाइजेशन का निर्माण या रिसर्च पेपर का निर्माण मैं करने जा रहा हूँ, उसके मेरे को पहले सैंपल या नमूने तो मेरे पास होने चाहिए ना। चल रहा फिर आगे। उन्होंने सही से करा हुआ है नहीं करा हुआ है, ये एक अलग से लगा लेती सवाल क्या है। उनके साथ। और अबे वही बता रहा हूँ ना, बात का वो है थोड़ा। मैं आज नहीं प्रोवाइड कर पा लाइट रहा, पी लेंगे यार भाई यार। नेक्स्ट टाइम में प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही चल लाइट पी लेंगे बस। हमारे एजुकेशन रिसर्च की बुक है, बेसिक एक दो बुक घंटे है, में उधर जाए। तो कोट उसी में मेरे को मिली, किसी और ने भी करी होगी, माइट बी पॉसिबल, लेकिन उसने कर रखा है। कोई प्रोफेसर ग्लास है, GLASS, जो ग्लास का शब्द हम प्रयोग करते हैं ना अपने मानसी उसमें ही रसोई वैसे ही में वो रहती है पानी बहुत के लिए हाइपर। गिलास है, साले वो पी के पता नहीं तो वही कैसे रहती ग्लास वो प्रोफेसर का ग्लास का है, कोई बात होगी कोई जर्मन तो हम स्कॉलर लोग थे। आएंगे ना। उनका वे बैक 69 का कोई आर्टिकल था जिसको वो बेस्ट ने कोट किया है। है। देखो मैं तो ये कह रहा था, मैं ये इसलिए बोल रहा था कि मैं संडे वाला प्लान कल है या ना, परसों तक तो कैंसिल आपके ग्रुप करके में उस वो दिन बस होली खेल कुछ लेना। बातें शेयर वहाँ करने के हाँ लिए और अरेंज कर दूंगा। मेरा एक मेरा ये बड़े प्लान है कि उसी दिन दोनों काम हो जाए तो बढ़िया है। वो आइडिया अच्छा उन्होंने है, कहा मैं था भी सपोर्ट करता हूँ। कि बहुत सारे ऐसे गले रिसर्च में मेरा आर्टिकल्स इन्फेक्शन भी है, तो मैं या सोच रहा हूँ रिसर्च पीऊँ क्या पेपर्स नहीं छपे समझ नहीं हुए आ हैं जो गलत है।
और उनके अंदर काफी कुछ ऐसा है जो गलती से भरा हुआ है और उनके कंक्लूजन भी गलत बने हुए हैं। गया मैं धक्का दे रहा हूँ। लेकिन एक बिगिनर रिसर्च में एक बिगिनर है, वो उनको सच मान के चल पड़ता है, उसके बेस से अपनी धारणाएं बनाता है और आगे अपना काम शुरू कर लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये जिम से ही आ रही है क्या? एक तो मैं हैं? अनइंटेंशनली मूव कर रहा हूँ, एक इंटेंशनली के साथ मूव कर रहा हूँ। प्लेगरिज्म से बचने के लिए मैं सेंटेंस बदलता जा रहा हूँ। आप क्या ही देख के अब तो हमारे पास AI ड्रिवन कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो आपको क्या क्या कर देंगे। माई सबमिशन टू माई स्कॉलर्स, मुंह मीठा करावा। humble submission to my scholars, kindly build your own language proficiency reading और writing की। चल रहा है ना, तू भी चल रहा है ना? AP स्टाइल हमारे पास के स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसने दे दिया है, उसके अंदर बहुत वेरिएबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। जितने भी जर्नल AP स्टाइल को फॉलो करते हैं उसके पेपर राइटिंग के स्टाइल में 80%, 90%, 70% का आपको सिमिलर दिखेगा, बाकी कहीं वेरिएबिलिटी आती ले है। जाऊंगा भाई। इतनी कर स्पेस हम थॉट प्रोसेस के एक्सप्रेशन को देते हैं ताकि उसको राइटिंग में आप इतना स्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो आपका थॉट प्रोसेस खत्म हो जाएगा। कुछ खाने वाला वो है मेरे पास, बिस्किट्स हैं, डेट्स इस है। बात को मैं रिपीट करता हूँ, क्या? अगर हम मैगी नहीं, पुआ बनाते हैं। फॉर्मेटिंग करते करते पुआ रखा है मेरे पास। स्कॉलर की सही कह रहा, पुआ बनाते हैं। सब है, अरे सीधा चल। सब है, टमाटर रहेगा, पुआ बस मूंगफली दे देते यार इसके रूम से। और एक्सप्रेसिंग वन थॉट्स वन व्यूज को उसकी फॉर्मेटिंग में ले जाएंगे तो उसकी ओरिजिनलिटी को जो मौलिकता तो खत्म हो जाएगी। अगर मौलिकता और ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, न्यूनेस नहीं आएगी। न्यूनेस आएगी तो हमारे पास इनोवेशन आने का स्कोप बनेगा, न्यूनेस नहीं आएगी तो इनोवेशन नहीं हो सकती है। Innovation based upon newness of the ideas or thinking, which generated by not one scholar but scholars in large number in different areas, जहाँ से वो उनको एकत्रित करके एक आगे पॉलिसी में या लोग इस तरीके से यूज करके उसको इनोवेशन में लेके जाते हैं। इनोवेशन अपने आप में कुछ नहीं है, डिफरेंट लोगों द्वारा डिफरेंट काइंड के आइडिया दिया गया था, इनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट को हम कहते हैं रिजल्ट इन वैल्यू बन के आती है, वो आपका इनोवेशन है। हम बहुत बार ये कहते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड, इनोवेटिव टीचिंग मेथड नहीं होएगा। रहते समझ गया। वो जो टीचिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी क्लास के अंदर, उसी के अंदर से कुछ एक बातों में की तब्दीली उसके अंदर आ गई है। तो शब्दों का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे रिसर्च में जिसका मीनिंग थोड़ा सा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लॉजिक और राइटनेस से बाहर जाता हो। तेरा ऐसे तो कर ही लेती है। हाँ, अंदर से ये काम करने के लिए पेपर राइटिंग के लिए, पेपर राइटिंग चाहे अबे हमने उसको जनरल ए में, बी में, सी में छापना है या डी में छापना, कहाँ छपना है, तो उसके लिए हर जर्नल ने अपनी एक पॉलिसी बनाई, कुछ फॉर्मेट डिसाइड किया, उसके अंदर वो गुंजाइश देते हैं थोड़ी सी उसको जो भी के प्रचलित शब्द है वेब साइंस का, स्कोपस का। अगर आप वो दो जर्नल या एक जर्नल का कोई आर्टिकल उठा के देखो जो वेब बेस्ड आर्टिकल आया हुआ है या वेब साइंस वाला आया हुआ है, जो स्कोपस का आया, नॉन स्कोपस वाला आया, आपको अंतर मिलेगा। और स्कोपस वाले दो आर्टिकल अगर किसी एक व्यक्ति को उठा लोगे, एक टीचर को उठा लोगे, दोनों की अभिव्यक्ति में आपको डिफरेंस नजर आएगा। प्रोवाइडेड इफ यू रीड एंड स्टडी दैट पेपर फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड। मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप एक ही ऑथर के दो छपे हुए पेपर्स को जो वर्चुअली एक ही थीम से के आसपास होंगे, तो पहले से आखिरी शब्द तक आप पढ़ेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसने फॉर्मेट को कितना फॉलो किया है, कहाँ कहाँ से उस फॉर्मेट को उसने अपने तरीके से यूज किया है, सो दैट ही और शी कुड गिव मीनिंग व्हाटसोएवर ही और शी वांटेड टू डू, सो दैट पीस ऑफ रिसर्च। मेरी हेल्थ आई उससे ले ली, मैं घर ले जा रहा हूँ कल।
हाइड्रो दो एलआईडी बन गई है क्या? हाँ मेरी तो एलटाइड मुझे तो दे देना, क्योंकि मैं थोड़ी आऊंगा फिर बार बार। ये वाली दे दे जो खुला हुआ है। हाँ ये कोई रही भी ये सर्च वाली मेरी पीस वाइट में हाँ को हम परफेक्ट ओके नहीं मान सकते, लेकिन कोई को ना कोई रिसर्च पीस ऐसा तो तू होगा आएगा जिसमें क्यों नहीं? हमारे को गलती नजर आती है जो तू भी आ तो गई आएगा ना है। तेरे यहाँ पे, तो ऐसे मेरे पास सैकड़े आएगा नहीं पेपर क्या हैं इसके बाद? जिनमें गलतियों का तो तेरा उल्टा एक चार्ज लगता लंबा है। चौड़ा ये तेरे मैम है। हाँ। किस्सा है, कहानियां हैं मैं लंबी अपने चौड़े। चार्ज कर रहा हूँ मेरे से ही ले रहा है और फिर मेरे को ये टीवी लगता लग है जाता है क्या कि टीवी? अगर ये रिसर्च क्या पेपर है तो कहीं मेरे लगा को है? रिसर्च पेपर छापने बंद कर टाइप देने सी है चाहिए। टी बताइए अपना, तेरा मोबाइल कौन सा है? रियल में पता ही शायद हो जाए तो तब भी लिखना बंद कर देना चाहिए। 3% है यार। जब मैं हाँ लिखूंगा भाई की अपनी अपनी मर्जी से बोलेगा टाइप लिखूंगा, बी है क्या? मैं ऐसे जर्नल में भेजूंगा सारे जहाँ पे टाइप बी एक है। अच्छा जिसका एक संदर्भ इतना पुराना होएगा। मोबाइल है क्या तेरा? मैं उस अब मार्केट तो में टाइप भी मैं नहीं अब आता ना। शब्द इस्तेमाल करूँ मार्केट में मैं वो दे कि अभी कह दिया दूँ। कि पीयर रिव्यू नहीं होएगा तो यूसी केयर होएगा, यूसी केयर नहीं होएगा स्कोपस होएगा, वेब साइंस होएगा। सभी जर्नल मार्केट में छप यार रहे हैं, अभी छापने वाले मतलब कमर्शियल कि लोग हैं, बहुत चीजें हो गई उनका एकेडमिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से जर्नल, सैकड़े जर्नल यूजीसी की लिस्ट में कभी वो शामिल हो जाते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं, जबकि उनके पहले शामिल होने से पहले वाले इश्यू या बाद वाले इश्यू में मेरे को क्वालिटेटिव डिफरेंस कोई नजर नहीं आया है। अब वो क्यों शामिल होते हैं, क्यों शामिल नहीं होते हैं, या क्यों रखते हैं, कहीं रखते हैं, तो इसके ऊपर मैं नहीं चर्चा करूंगा, ना करनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बियॉन्ड एथिक्स है। लेकिन मेरे पास भैया कुछ एक लिस्ट ऐसी जर्नल्स की है जिनको कभी ना यूजीसी ने एक्सेप्ट किया ना किसी और ने किया, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल छप कर आए हैं, बहुत अच्छे रिसर्च पेपर छप के। मैं वर्ड देखिए दोनों यूज कर रहा हूँ, आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर। तो ये जो यूसी के लिस्ट में नहीं है, जब मेरे को कोई स्कॉलर कहता है कि भी मैंने पेपर छपवाना है, मेरे को बताओ मैं कहाँ पर किसके लिए वो भेजूं या बोलूं, मैं जब बोलता हूँ फिर वो इमीडिएट थोड़ी देर वो कहता है वो यूसी के लिस्ट में नहीं है। मैंने कहा आपने पेपर छपवाना है कि केला खाया क्या? यूसी के लिस्ट वाला छपवाना है? केला खाया क्या? फिर वो कहता नहीं जी, जो रैंकिंग है एपीए की उसमें वो यूसी केयर मांगते हैं। मैंने कहा फिर तो मैं तो मैं एक अच्छे दौर में पैदा हुआ, अच्छे दौर से मैं रिटायर होकर बाहर आ गया हूँ, मेरे को वो जरूरत नहीं पड़ी, आप लोगों की जरूरत है अभी किया तो आप उन्होंने उसी के मतलब सर्च स्टिल करिए, उसमें मैं स्टिल कुछ नहीं कर वेकेंट। पाऊंगा। मैंने कहा भेज दो, आपको भेज दूंगा। ऐसे एपी का हाँ स्टाइल उनको अब मिल चल जाएगा रहा है, आराम से। एपी में हम 7.0 आ मैंने गया भेज है, दिया, आप देखो। तो मार्केट आ गई है, तो हाँ लाया एपीए तो 1 से लेके एपीए 7.00 तक पहुंचने का उन्होंने लेट सफर है। देखा मैंने, तो वो बोलते हैं कि अभी भी उसमें आप देख लीजिए, नेपाल पे आया, छोटी ये मोटी आपका यूनिवर्सिटी पूरे में का आया। पूरा मैं शब्द भी इस्तेमाल करूंगा। तो अच्छा आपके खासा आपका जयपुर वाला दायित्व अच्छा बनता खासा है, बड़ा कैंपस जो भाई। पीएचडी स्कॉलर हैं या एमए कर रहे हैं, एमएससी में हैं, कि एपीए 7 में और एपीए 6 में या एपीए 6.5 में या एपीए 4 में, एपीए 5 में, और इनमें कितना अंतर आ गया है। उसको हम ऐसे कहते हैं कि आईपी 7 मैंने यूज नहीं किया है तो शायद मैंने कोई क्राइम ना कर दिया हो। वाटी का भाई कुछ पूरे नहीं है कि मेरे को पूरे तरह से रेफरेंसें अटेंड करी करनी है, आनी मैंने ऐसे चाहिए, देखा है। उसमें तकनीकी तौर पे गलती ना हो। उस स्टैंडर्ड यार्डस्टिक को उन्होंने बना दिया है, ठीक है, आई विल हैव टू पूरी फॉलो। करी पूरी पूरी और एंड तक अब करती है। एपी 7 को मेरे दो स्कॉलर भी थीसिस कंप्लीट कर, हाँ तो मैंने देखा है इसका। डेफिनेटली उनका एपी 6 में चल रहा था, अब उसमें जो रेफरेंस वो एपीए 7 के हिसाब से नहीं है तो वो चेंज करेंगे। लेकिन उसके चेंज करने से क्वालिटी ऑफ वर्क में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ये मेरी समझ से बाहर है। आई थिंक इस पॉइंट को आप कहीं समझेंगे पार्टिसिपेशन और अच्छी कर दो, कि एक जो टेस्ट जर्नल करके की राइटिंग बैक चलेगा, है अच्छी कर का वो देंगे तो अलग, उसके अच्छी राइटिंग में भी नहीं आ रहा, मैं भी आया हूँ केवल रेफरेंसिंग पे। मैंने रेफरेंस को क्यों इम्पोर्टेंस दी है बिना टेस्ट के कि देगा भाई, आपको रेफरेंसिंग चाहिए तो। सबसे, सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है नो डाउट, लेकिन रेफरेंसिंग उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा ऑरवेल का, और उनके कई नॉवल हैं, उनके बड़े कंटेम्प्रेरी राइटर रहे हैं, ऑरवेल, ORWELL, ऑरवेल का। उन्होंने कभी कहा था कि ऑल मैन आर इक्वल, ऐसे कुछ शब्द था, मैन कहा जाए, अरे वो उन्होंने तो और पर्सन आगे कहा का सोचा है। ऑल मैन आर इक्वल, फिर कहता नहीं बट स्टिल सम आर मोर इक्वल, इक्वलिटी में भी आगे वो कुछ है। तो बोलेंगे, तो देखते एपीए हैं। 7.00 में जो कुछ तब्दीली करी है और एपी 6.5 में, उसमें क्या है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम कुछ चेंज करेंगे तो
पता नहीं क्या उससे कोई इम्प्रूवमेंट होएगी। क्वालिटेटिवली मेरे को देखना है। कंसल्टेंसी फर्म सोच रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। क्वालिटेटिवली मेरे को देखना है तभी तो पैसा बहुत है। कि जब मैं कोट वही करूं करती है ना। सरनेम उसी से तो इनिशियल सीख रहा हूँ। एक आथर दो PWC आथर नहीं सीख रहा है? क्या 3 नहीं, आथर PWC तो एयरटेल कहाँ यूज करना है उसके ऊपर अपनी उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बदले हैं। लर्निंग एक्सपेरिमेंट करके फिर सीख रहे हैं। बुक आर्टिकल है जर्नल आर्टिकल है। बुक PWC आर्टिकल है या बुक है तो उसका पब्लिशर और सिटी ऑफ बट पब्लिकेशन अपना कैसे पहले लिखना स्टार्ट है। हुआ तो साइकोलॉजी में बुक खत्म, आर्टिकल है फिर धीरे धीरे तो बुक अलग आर्टिकल अलग में पेजेस को कहाँ डालना है उसमें नीड भी वो है। कहीं ऐसे शिफ्टिंग हुई हुई है। अगर आप थीसिस में यूनिफॉर्मली एक पैटर्न फॉलो करोगे जो रिसर्चर आपका सबसे थीसिस पहले अब इसको दिखना बोलिए ना चाहेगा या उसे कोई रेफरेंस देखना होगा योर और दोस्त और क्या करता है उसकी यार, एक्सेस कैसे बनेगी वो योर दोस्त बिbliography बताती है लिंक्डइन पे अभी या 55,000 रेफरेंसिंग फॉलोअर्स पहुंच गए बताती शायद, है। तो 50 से तो उसमें ऊपर ही है। तो यही काम तो ईपी करता डाला है सिलेक्ट ले या ली गवर्नमेंट से, कॉलन डाला है IIT से नहीं टाइप डाला कर है लिया, वो मैंने बातें सब पे मैटर टाइप कर करती रखा हैं है। या कंटेंट मैटर करता है। मेरे को लीड मिलनी चाहिए। वही मेरे को रास्ता दिखा रहा है कि रास्ते के बीच में कंकर कहाँ पड़ा है या उसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज वो वही कहाँ है, पड़ा मेरा है। इंटरेस्ट भी और ये मैं एक्सपर्टीज आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैनी पीपल में डिसएग्री विद मी ड्यू अपॉलजी टू ऑल दोज पीपल सही है भैया। बट जो एक फॉर्मेट मैंने अपनी लाइफ में पहले फॉर्मेट में यूज किया था। खुद का मॉडल मेरे बना 70 रेफरेंस थे। मैंने 70 रेफरेंस एक स्टाइल में वैसे वो लिखे। चाहे किताब का लिखूंगा तो एक ही स्टाइल में स्कूल लिखूंगा। वाले तो जर्नल का एक स्टाइल में बहुत उसमें लिखूंगा। बहुत टाइम लगता पीडी है। थीसिस उनका एक ही स्टाइल में लिखूंगा। एमफिल के क्या एमए हुआ के कैसे डेजिग्नेशन थे उनको मैंने कोट किया एक ही क्या तरीके लिखूंगा। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं स्कूल में गवर्नमेंट ऑफ क्या इंडिया के डॉक्यूमेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के थे। जब मैं हिमाचल में था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जब पंजाब में बैठा हूँ। यूएन के डॉक्यूमेंट्स करिकुलम हैं वाला तो अभी यूनेस्को नहीं के भाई, हैं अभी उसमें बहुत टाइम लगता WHO है, के साले हैं हमारा बोल दी तूने बात। UNDP के हैं। करिकुलम तो उनको डिजाइन की बात लिखने कर के रहा है ना, स्टाइल उसमें में बहुत मैं टाइम एक लगता है। सिमिलरिटी बना के रखूंगा। तो वो इम्पोर्टेंट है सिलेबस का या डिजाइन उसको किस करिकुलम स्टाइल में करेंगे, लिखा है जिसमें वो होलिस्टिक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट में है। करूंगा, वो मेरा वो इंटरेस्ट स्टाइल में भी वही बातें आ उसमें रही टाइम हैं। लगेगा। उससे पहले एक दो पता क्या हो बातों जाएगा, को एजुकेशनल हल्का सा ट्रिप ऑर्गेनाइज करके बदलाव पैकेज देकर बनाएंगे, जैसे तो 5,000 रुपये बदलाव पर मैंने दे स्टूडेंट। दिया तो बिल्कुल अच्छी स्कूल वाले बात से है। मैं बात उस करी स्टैंडर्ड कि हम ये फॉर्मेट की ओर बढ़ एजुकेशनल गया ट्रिप है, हूँ। इसमें ये अगर लर्निंग वो आउटकम है, बदलाव कम अगर भी तुम्हें नजर वहां से आएगा लेकिन करवाना है रेफरेंस बच्चों को कंप्लीट नजर आएगा इंट्रोड्यूस कराओ, तो तो वो मैं भी अपने वहां आप से में बच्चे एक जाएंगे, हम स्पॉन्सर गुणवत्ता कर देंगे। है स्पॉन्सर कि कैसे होगा, जो स्कॉलर जिसको मेरा स्पॉन्सर थीसिस करना है पढ़ना तो तुम चाहेगा कर वो दो। देखता है कि फिर जब वो ऐसे कहीं पढ़ कुछ रहा बड़े था बड़े उसको स्कूल कोई है रेफरेंस सिंधिया देखता वगैरह, है। वो खुद का इमीडिएटली वो उनकी उल्टा आगे एजुकेशनल देखेगा मॉडल है, रेफरेंसिंग में या ट्रिप के। तो ये ऐसे सोचा अपने है मैंने, अब देखो कितना बिbliography एग्जीक्यूट में। होता है। तो उसमें उसको वो नाम सरनेम चलिए स्कूल में डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट मंथ नाम हम उसको नजर आना सनबीम में वो चाहिए करेंगे वर्कशॉप। ताकि वो उसको देख सके अगर सही को उसकी पहले इच्छा अपने पैदा इनको तो दे, होती है। उसमें क्या करेगा, वहाँ तो पे मैं ऐसे बहुत चलेगा देर से PWC, देख तो रहा वहाँ पे हूँ और जो जो खुद 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 वन अपना ऑफ अपना द आइडिया लेके आ बेस्ट रहे हैं वो लोग जाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ जर्नल पे जो चार्ज मेरे ले रहा है पास बंदा। अभी भी तो ऐसे फ्री में आता है और तो मैं चल उसमें जाता है, से चार्ज ले रहे हो तो बहुत क्वालिटी देना पड़ेगा ना कुछ। कोट करता हूँ अनकोट करता तो हूँ। वर्कशॉप डिजाइन कर रहे हैं, जैसे मेरा EPW एक आप आइडिया है लोगों ने मेरा सुना खुद का, होगा इकोनॉमिक एंड जिसको पोलिटिकल मैंने वीकली। सोचा, और बाकी एक दो उसमें टीम कहाँ में ऐसे शब्द डाल दिया। EPW इकोनॉमिक वही एंड तो बता रहा हूँ। पोलिटिकल तो वीकली। उसमें ये है कि जो उस स्क्रीन इकोनॉमिक हाइजीन है एंड ना, पोलिटिकल वीकली में जो स्क्रीन हाइजीन आर्टिकल पे जा सोच रहे रहा हूँ हैं वर्कशॉप। वो तो केवल उसमें टीचर इकोनॉमिक और कैसे हेल्प कर पोलिटिकल के सकते नहीं हैं स्टूडेंट एजुकेशन को, के तो उस पर ऊपर भी रिसर्च है करके एक वर्कशॉप है। ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी है। तो ऐसे कुछ हर किसी फील्ड आइडिया है के कुछ है, तो रिसर्च पेपर्स ऐसे अगर और आइडिया है तो आर्टिकल्स डिजाइन कर दो और ज्यादा, फिर सम करेंगे। इंफॉर्मेशन EPW में अवेलेबल हाँ होती चलते है। हैं। वीकली है सब। आप देखोगे आपकी लाइब्रेरी चेक करिए EPW का भाई तेरे तो को उसमें मैं इतना वेलनेस की बोल रहा हूँ, ये नजर तेरे आएगी लिए ही नहीं, हैप्पीनेस नजर आएगी मैं पॉजिटिव आप जितने भी साइकोलॉजी का छोटे नजर ग्रुप आएगा बनाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी पे नजर साई आएगा। कनेक्ट एक ओपन स्पेस है, तो आएंगे जहाँ तेरे मन उसके में जो आइडिया आ हर रहा है, एक प्रॉपर्टी, के जो कुछ रिसर्च एजुकेशनल, आर्टिकल है उनमें कोई आपको एंडर एग्जीक्यूट पॉइंट में करने का, बिbliography नजर एक्सपेरिमेंट करने आएगी का मन कर रहा है, तू फ्री है। रेफरेंसिंग नजर आएगी एंड बस नोट्स नजर आएंगे उसमें तेरे को फुट बस नोट्स पहले नजर पूरा आएंगे। उसका तो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे हर बनाना है जर्नल अपने बोलना, तरीके से कुछ फिक्स करता है। स्ट्रक्चर बना के शेयर सोफिस्टिकेशन करना है, हमारा बड़ा टीम का बढ़िया कंसेप्ट है। सबके जितने हैं उनको साइकोलॉजी बोलेंगे वालों को कि हाँ पर्सनालिटी ये एंड सही इंडिविजुअल रिलायबल लग डिफरेंसेस रहा है, छप के और उसमें आता तेरे को है। सपोर्ट भी आप पूरी उनके टीम जर्नल मेंबर में का नजर ऐसे कोई मारेंगे वहां से कोई बंदे आपको का तैयार है। एक स्मृति जैसे नजर बुक क्लब का आएगी। आइडिया था, बिल्कुल अच्छी तो बात है बुक क्लब का स्मृति तो चल बनानी चाहिए। मेरा ही था, तो अग्रीड। बुक क्लब का मैंने आइडिया कर दिया एग्जीक्यूट, पर मेरे पास इतना ज्यादा लेकिन टाइम अगर नहीं था वो कहीं पे स्ट्रेटेजी हल्की करने सी के लिए, डिविजन हो तो मैं उसका जाती है कोऑर्डिनेटर नहीं बना। तो तो वो अवंतिका का टॉलरेंस जो लिमिट जूनियर है भी ना, वो इतनी कर पहले रहनी रन कर चाहिए चुकी है एक दो बुक क्योंकि क्लब, हो सकता है तो मेरे उसने पास प्रपोजल कंप्लीट बना के मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजा। ना हो जब मैं तो लिख रहा प्रपोजल होता मेरे को हूँ। अच्छा लगा, तो तो इसलिए उस मैंने सोचा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर के ऐसा ना करूँ, होने की दे वजह दूंगा। से
तो मैं अपने काम को उसलिए ना भेज रिकॉर्ड पाऊँ या ऐड किया इसलिए ना, वो एक्सेप्ट ना हो तो वो पाए वाला कि बुक उसकी क्लब का आईडी। तो कॉमा ऐसे या ही आईडी जैसे बिंदु कोई या आ रहा है उसका ना यार, सेमी जैसे अब कॉलन मेरे या पास एक उसका आईडी वो अगर कहाँ तू पे वो था, लेना तो बता, तो वो थोड़ा छोटा है सा ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरे को लगता उसमें है मैं कि ये वो सोच रहा हूँ, जैसे रिसर्चर ग्रुप के पे तो साथ सारे ज्यादती है। क्लिनिकल नंबर स्किल के एक, लिए मैसेज आते हैं कि ये स्किल है, ये स्किल है, तो इसका हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। रेफरेंसिंग इज द जैसे मोस्ट ग्रुप पे इम्पोर्टेंट काफी एस्पेक्ट। रेस्पॉन्स काफी स्किल रेफरेंसिंग रिट्राई कर लेते हैं कब बहुत सारे, करनी अभी है? तो कितने आए होंगे, कम से जब कम मेरे 50 को 60 कोई तो आ गए रिसर्च होंगे। पेपर मिल गया, तो कोई उनको बुक मिल अपन गई, एक ड्राइव लिंक पे फोल्डर के कोई साथ आर्टिकल नाम मिल टाइटल गया, के साथ में उनको चाहे सबको अखबार में कंपाइल है, करके रखना है। मैगजीन में और है, फिर हम जर्नल में ये है, सर्कुलेट करेंगे पूरे तो मेरा ग्रुप्स में, पहला कम्युनिटीज में, जो लिंक्डइन पे, स्टेप साइबर हमारे में, टाइम जो रहा भी है, एक हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन भी उसको देता है छोड़ हमारी दिया मेन आईडी है, पे, एक कोई तो स्किल भेजता वो है, सीधा बिजनेस सीधा वर्क, होता कोई है डिस्क्रिप्शन, पहला स्टेप टेस्ट, कि उसकी स्किल, शॉर्ट बिब्लियोग्राफी डॉक्यूमेंट। बनाओ, अरे जैसे जो उसमें चलन डीएटी हो स्टाइल था गया, हमने उसी के से 16 बनाए, पीएफ हो गया, ऐसे जो पे चलन स्टाइल है वो ग्रुप पे नहीं लिखते आते हैं। मैसेज बहुत और कि अब ये वाली अभी स्किल कुछ दे दो, जर्नल टेस्ट के दे दो। मैं देख रहा तो था इसमें पिछले अपन ऐसे 5-7 डालेंगे सालों मैसेज में के, कि कोई भी एक अपलोड कुछ मैं करेगा, शेयर कर किसी सकता ना हूँ किसी ने बाद एक में, रिसर्च तो करी होगी, कि डिसर्टेशन सब कर वो चुके हैं, तो उसमें जनरल सारे आर्टिकल, स्किल जर्नल के नेल अंदर करने जो हैं। आर्टिकल छप के आ रहे हैं वो खुद कहता है कि मेरे को साइट एक वो कैसे करेगा, करना आपके है, पास पूरा तो कंपाइल आ गलती ना जाएगा, हो और एक जाए, टाइम पे इतना हो तो जाएगा अच्छी ज्यादा बात है। कि हम उसको अपन आगे तो उस रिसर्च कमर्शलाइज भी, पेपर मतलब को पेड कोड भी कर कैसे सकते करना हैं। है, साइट कैसे करना है, तो अगर वो मेरे को लिखा उसको मिल लीड गया लेना हमारे है को, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर मेरे को 8 जगह से मिल रहा है, जर्नल रिसर्च जर्नल्स है, 8 के स्टाइल में कहीं अरे भाई वो तो परिवर्तन तू हो लीड सकता है, करेगा कहीं ना कहीं भाई, वेरिएशन हो तू सकती उसको है, पूरा पर संभालेगा मैंने उसी को, पूरा 8 में उसको। से जैसे दिया गया वैसा नहीं लिखना है। 8 में से मैंने हाँ वो एपीए सब को मैंने ऐसे मानकर, मैसेज फॉरवर्ड सब एपीए वो 7 करता को रहूंगा एक मानकर या स्किल। एपीए 6.5 को मानकर मैंने रेफरेंस को देखना है। अगर वो ऑलरेडी 7 में, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तो मैं उसको मोड करूंगा। और ये आजकल जो आई देख एम रहे हैं नॉट जितने भी रेजर, पेपर में पहली सब में बात मैं कह रहा, आई एम ये नॉट सब तो पूछ रेजर, ही जा रहा है कि लेकिन तुम्हारा मैं कहीं अपने को ओपन वॉलंटियर रखता किया है हूँ, क्या, लेकिन कहीं मैं वो है इतना भी क्या, तुम्हारा रखूंगा एक्सपीरियंस कि वगैरह। अगर किसी का कोई तो ये किसी टीम आर्टिकल बिल्डिंग को वाला ये सब मैं पूरा उस कहीं ना तरीके कहीं से ज्यादा मोड नहीं मांगे कर जा रहा है, सकता, प्राइवेट में तो मांग लेकिन रहे हैं, फिर भी रखता गवर्नमेंट में हूँ, पता नहीं, तो प्राइवेट में उससे तो हर कोई जगह। बहुत क्योंकि शायद बड़ा संदीप इशू का नहीं बनना चाहिए, जो और हम उसको रेज्यूमे इशू नहीं बना माना उसी लेते वजह हैं से हट while गया था accepting or पोस्ट। rejecting one particular search paper क्या? to be published or not to be अच्छा published। तो आपका बिब्लियोग्राफी ठीक नहीं है, तो बिब्लियोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आ गया है। और बिब्लियोग्राफी आप किसका करेंगे, बनाएंगे या रेफरेंसिंग किसी करोगे, जो आपके रिव्यूड आर्टिकल है। यार लाइट क्यों नहीं है? अब रिव्यूड आर्टिकल है तो उसमें कहाँ से देखना है, तो आपने किसी पेपर को पढ़ना है। आप बिना रिव्यू के नहीं रिसर्च में चल सकते, मान लीजिए, और रिव्यू के आर्टिकल करना, आपके पास सैकड़ों प्रकार के बनेंगे। तो उसमें से मैंने आपके साथ जो आज एग्जाम्पल पिकअप करी है, वो एक रॉन्ग पेपर की, रॉन्गली डन पेपर की करी हुई है। स्कूल में से इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। अरे देख ना, कहते बैड एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स। ये अंदर खोल। अब आप इस पेपर के टाइटल पे देखिए, फोकस करिए, तो मेरे को हेल्प करिए। पेपर का टाइटल क्या है? कपड़ा डाल दिए क्या? हेलो ये सब थे हमारे कॉलेज के। अरे हमको तो अब शक होने लगा, साला चल रहा है। नित्या, Yes. ऐसा टाइटल लगा पढ़िए। मेरे को वो कर दिया है। Attitude towards e-learning among research scholars with respect to demographical variables. हाँ, इसमें 3 गलतियां टाइटल में, बहुत अंधेरा है। अच्छा आप नोट कर लीजिए। बाद में इस पे चर्चा आज नहीं कर पाएंगे, बाद में करेंगे। टेबल खरीदा है क्या तू भी? क्या? खरीदा है? ये एटीट्यूड ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स है, बैगेज में लिया एटीट्यूड ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स टुवर्ड्स ई लर्निंग इन रिलेशन टू डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमोग्राफिकल नहीं होगा, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। देवे चक्कू तो दे, काट के रखूंगा। सर साले रिकॉर्डिंग चल रही है। 3 गलती देखी, आवाज जा रही है क्या? बाद में चर्चा करेंगे इस पे, आज नहीं करेंगे। कुछ ने करना होगा बात कर लेगा। ओके, लेट वी कंक्लूड। इसमें कितने कीवर्ड्स हैं? इसका कॉल उसी का क्या होता है? एटीट्यूड टुवर्ड्स ई लर्निंग 1, रिसर्च स्कॉलर 2। अब डेमोग्राफिक वेरिएबल को नीचे उसने की टर्म में डाल दिया, लेकिन डेमोग्राफिक वेरिएबल अपने आप में कुछ भी कन्वे नहीं करता है। व्हाट डू यू इंक्लूड इन डेमोग्राफिक? आई नो एटीट्यूड में क्या आएगा, रिसर्च स्कॉलर में क्या आएगा, डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या आना चाहिए, जेंडर है, स्ट्रीम है, रेजिडेंस है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर देयर। अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है तो आप कैसे लिखोगे? नहीं लिखोगे तो एम्बिगुइटी है, तो कीवर्ड नहीं है। डेमोग्राफिक वेरिएबल कीवर्ड में नहीं आएगा। कौन सा है? रिसर्च पेपर में कीवर्ड किसका होगा? कॉन्सेप्चुअल होगा। डेमोग्राफिक वर्ड कॉन्सेप्चुअल नहीं है।
क्या कर लियो? हाँ सोशल शब्द डेमो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है। हमने लिखे टाइटल में साइकोलॉजिकल कोलेट्स ऑफ अचीवमेंट, साइकोलॉजिकल कोलेट्स ऑफ मोटिवेशन। तो साइकोलॉजिकल कोलेट्स में क्या आता है, जो हाँ आना है वो हेलो हमारे लिए कीवर्ड है। हाँ बोल यार, वो मैं काट हाँ। आई थिंक अरे यार वो आई एम एबल मतलब टू अखंड कम्युनिकेट दिस अखंड तो पॉइंट। अब मना ही कर दिया, उसके पेरेंट्स आ रहे थे कर, अब मेरे फिर को एक हेल्प नहीं आ करिए, पाया उनका। ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, लास्ट लाइन पढ़ दीजिए, वही मैं वाइल पूछ से, रहा हूँ। वाइल से कौन पढ़िए। कितने बजे कितने While वही as मैं field of डायग्रामा में हूँ research कि had कल जा significant रहा हूँ सही influence जगह। on the हेलो attitude फील्ड ऑफ, towards एक मिनट रुकिए, आवाज आ रही है मेरी? फील्ड ऑफ रिसर्च उसका एक अरे मैं कह रहा हूँ वही डेमोग्राफिक तू अभी वेरिएबल है। है कहाँ पर तू? While as field of research had significant influence घर on the रूम पे नहीं गई attitude तू? towards e-learning, हाँ of research पढ़ लीजिए। scholars. Further, देख no मेरे पास अभी दो significant इशू mean है, नहीं एक तो नहीं, ये कि difference मेरी उसी बैटरी सेंटेंस डेड है के द्वारा बिल्कुल, पढ़िए। as और लाइट while as वाइल field of मेरी और लाइट research नहीं है यहाँ पे had रूम पे भी मेरा। significant influence और on the अगर attitude अपन towards e-learning हाँ of research अगर scholars. जैसे अगर अपन जाते हैं स्टॉप, तो बस मैं हो गया थोड़ा ना? सा उसमें हूँ कैसे कि सेंटेंस कंप्लीट है? मतलब कितने बजे क्वेश्चन पिएंगे मार्क, अपन? 7 बजे आगे तक? चलिए, आप पढ़िए। Further, no significant mean difference was found among the three fields of research: देर art, रात में तो बीच में, उतरने से science, रही हाँ, सही, जो फील्ड मतलब ऑफ रात में तो रिसर्च है नहीं ऊपर उतरी। कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, जहाँ कह रहा है कि नो सिग्निफिकेंट रिजल्ट हम्म, आया है, Hmm, कह रहा है ना। yes sir. तो मैं नहीं आया पहली तब लाइन भी तो वैसे तू पिएगी, इनकम्प्लीट तुम है, पिएंगे दूसरी ना तुम तो। और भी इनकम्प्लीट है, लेकिन पहली और दूसरी लाइन तो दोनों एक काम कर, कंट्राडिक्ट तू कर रही हैं। पहुंच, इसने मैं जो अभी रिजल्ट आता हूँ। दिए मतलब हैं अगर मेरा वो मेरा बिल्कुल मन ही तो है पीने के, कुछ बस नहीं इसी बता वजह से रहे सोच हैं। रहा हूँ कि यार 4:30 बजे तक कल हो जाएगा क्या ओके, यार क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, पेज नंबर 2 इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ अगर दीजिए। अगर मैं सवा 6 तक कहाँ कैसे पी से पाएंगे? सर? अभी मैं पैकिंग नहीं करी, ऑब्जेक्टिव, अभी पहुंचा हूँ, मैं लेट पहुंचा Objective. हूँ। To study the influence of gender, residential background, field चल of ठीक है फिर, research, and their various ठीक है interactions on पहुंचू, मैं attitude आता हूँ वहीं पे, डायरेक्ट towards ही आ रहा हूँ, या e-learning कहाँ of पे, research लंका पे scholars. आ जाऊंगा मैं, ठीक है, देखिए जेंडर का, या रेजिडेंशियल डायरेक्ट आ जाऊँ? बैकग्राउंड का, फील्ड ऑफ रिसर्च का, तीन तीन चल इसने ठीक है, वेरिएबल मैं लिए डायरेक्ट आता हैं हूँ। जिसको डेमोग्राफिक वेरिएबल कह रहा है। कौन कौन से? जेंडर का, रेजिडेंशियल ठीक है बैकग्राउंड का और फील्ड ऑफ रिसर्च का। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस वर्ड, चल लो इम्पैक्ट यार। वर्ड और इफेक्ट। अरे इफेक्ट, रोने लगा भाई। इन्फ्लुएंस, तीसरा शब्द कौन सा बोला मैंने? इम्पैक्ट। ये तीनों एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। जेंडर का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, जेंडर वाइज वेरिएशन होंगी। कोई कोई स्कॉलर पीएचडी कर रहा है साइंस में, कोई कर रहा है सोशल साइंस में, कोई कर रहा है क्या बोलते हैं आर्ट्स में, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा होगा पीएचडी के ऊपर, वो वेरिएशन हो सकती हैं। साइंस वाले ज्यादा ई लर्निंग पे विश्वास कर लेंगे, सोशल साइंस वाला कम करेगा, जो लैंग्वेज वाला कम बिल्कुल कम करेगा, करना ही चाहिए लैंग्वेज वाले को। तो लैंग्वेज वाला जो है रिसर्चर है, वो उसको लिटरेचर पढ़ना है, पोएम पढ़नी है, उसकी कहानी पढ़नी है, उसको नॉवल पढ़ना है, वो लैपटॉप पे पढ़ेगा, कंप्यूटर पे पढ़ेगा, या वो नॉवल से पढ़ेगा, ओरिजिनल राइटिंग से पढ़ेगा। विज्ञान वाला तो मान लिया ना कि उसको कुछ वो टेक्निक वहीं दिखेगी आपको, जो पहले इसके जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी रिसर्च होती थी ना। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ब्लाइंडनेस बढ़ी है, तो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होएगा। और तीसरी बात, रेजिडेंशियल बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस कैसे आएगा? रूरल और अर्बन स्कॉलर का डिफरेंशियल जो आएगा, वेरिएशन है, that cannot be taken up as influence of demographic variables। टाइटल में खुद कह रहा है इन विद रिस्पेक्ट टू है, वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंस को मेजर नहीं करता है। इस पे फिर चर्चा होगी, अभी नहीं, आगे चलिए। हाइपोथेसिस पढ़िए। Hypothesis, sir. हाँ जी, There is no significant influence of gender, residential background, field of research, and their various interactions on attitude towards e-learning of research scholars. ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है दिख रहा है? ये आपके लिए मैंने ओपन छोड़ रहा हूँ, साथ में अब मैं सिंपली इतना बताऊंगा
ऑब्जेक्टिव में वेरिएबल बोलते हैं। नित्या ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव में वेरिएबल बोलते हैं, जेंडर या वेरिएबल। हाइपोथेसिस में क्या आएगा, मेल एंड फीमेल। हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। जब उसने कहा रेजिडेंशियल बैकग्राउंड, उसमें क्या आएगा, रूरल अर्बन। और फील्ड ऑफ रिसर्च का है तो 3 है, वो आर्ट्स का, साइंस का और तीसरा कौन सा, सोशल साइंस का है। तो हाइपोथेसिस में रिमेंबर वन थिंग, हाइपोथेसिस में वेरिएबल के लेवल बोले जाते हैं, जबकि अगर वो स्टडी आपकी डिफरेंशियल को शो कर रही